6 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 12 साल एक्सपीरियंस लोग हैं आज हमारे साथ। यानी डिग्रेड तो नहीं कर रहा है गैस, लेकिन मतलब कर तो डेवलपर करते तो नहीं है अच्छा एज अ फील्ड तो नहीं डिग्रेड कर See, रहा when I think about the days of my starting, it was just कि वो बटन क्लिक करके देख लो चल रहा है कि नहीं। वो बटन क्लिक जब हुआ आप तो ड्राइविंग सीखते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि यार मैंने i20 सीखी है, यू लर्न द स्किल ड्राइविंग, Yeah. राइट? तो उसी तरीके से प्लेराइट, सेलेनियम, ये सब दे आर लाइक कि ये टूल्स हैं, आप ऑटोमेशन सीख रहे हो। तो It अगर has आपने gone deeper lot of times. That is what I have seen. It's not unwanted, it's very wanted changes of course. कि JavaScript के tools ऐसे निकल रहे थे मार्केट में एग्जैक्टली जैसे कि मतलब वो है ना वीड निकलता है ना सब्जियों के बीच से। वेलकम एवरीवन टू टेक अनफिल्टर्ड विद मनीष। सो सबसे पहले आप सब अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और साथ में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे फॉर आइस ब्रेकिंग कि आपने पहली बार क्यूए टर्म या टेस्टिंग टर्म कब सुनी। सो सबसे पहले राहुल से स्टार्ट करते हैं। Thank you, Manish. I'm Rahul Yadav, currently Vice President at BlackRock. Overall, close to 12 years experience. I've completed 12 years in November, I think so. Yes. So, I started my journey of testing when I had this course in operating system. That was the course operating system in 4th semester. And that there was a chapter called software testing. That is the first time when I actually encountered what software testing is all about. And that was a subject which was, at the time it was just a subject for you in college. It was just, I have to pass, this subject. So software testing was one which is very theoretical at that time. It was about related to the concept which we now called manual testing, so-called manual testing. So those concepts were there. So at the time it was only that I have to pass this subject. Then once I got placed in that company and then I joined the organization, then I came to know, okay, there are different verticals and I am in testing because somebody, the director or the, higher org leader, they told me that, okay, your vertical is testing. Then I actually got to know that I am into testing. I will be testing, right? So that is how my foray into the testing world actually started. And it was like 12 long years ago. Right now, for the last 12 years, I've been testing software, different kind of softwares. It's been I would say, fun journey, full of learning, full of different experience, loving it as every day passes. ग्रेट राहुल। और मूव करते हैं अब सुनित पे। सुनित, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आप टेस्टिंग में आपने स्टार्ट किया? I did my graduation in 2008, or I did it in electronics and communication, so I had no idea about testing. Absolutely no idea about programming as well. तो जो भी आता था मतलब it was about VLSI design और वो सब थोड़ा बहुत किया था, तो कॉलेज जितना करते हैं कॉलेज। So 2008 में when I was doing my final project in HAL, so that is when I actually got connected to one of my college seniors who was working as a graduate engineer trainee at HAL, Hindustan Aeronautics Limited. और वहाँ पे he was actually testing aircraft के simulation softwares. And that is where my interest actually came out. Although not testing aircraft level simulation software right now. But yeah, so that is where I got my interest in testing, got my first exposure to this domain as a job opportunity. So I looked further into it. उसमें देखा कि और क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, how to get into it, मतलब what are the future prospects. So that is where my connect with this industry happened, and it has been about 15 years or so in this domain now. And like Rahul, I'm also enjoying it. Every day of it is a different learning altogether. In my current org, in my previous orgs. Yeah, that's great. So काफ़ी आपकी एक डिफरेंट जर्नी रही है फ्रॉम ईसी टू डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड भारत पे। और मतलब काफ़ी कहाँ एरोडायनामिक्स वाली चीज़ों से आपने इंस्पायर होके फिनटेक में वर्क कर रहे हो। Dynamic रह we- गया उसमें, aero of running, not so much. Exactly. So we will talk about it like more. So now move to Gaurav. Like, what is your journey? कैसे आपने start किया?
मैंने फर्स्ट टाइम तो जो टेस्टिंग था मतलब बाद में रियलाइज़ किया कि हमने इंजीनियरिंग में एक बुक पढ़ते हैं प्रेसमैन करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था। तो उसमें बस एक ही चैप्टर होता है, जो इसलिए कुछ लोगों की कंप्लेंट भी रहती है कि इंजीनियरिंग में दे डोंट टीच अस व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड ऑल। तो बस वो पढ़ा था बट आई डिडंट नो कि व्हाट इज़ टेस्टिंग, व्हाट इज़ डेवलपमेंट ये वो। आई गॉट प्लेस्ड इन कन्वर्जेस इन हैदराबाद। तो वहाँ पर क्या होता था कि देयर विल बी वेरियस मैनेजर्स सिटिंग अराउंड यू। तो हर कोई आके अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन या कुछ भी अपने बारे में बताता था एंड दे हैव रिक्वायरमेंट एंड दे टेक यू। तो it was like कि some people got into some R&D team, some got into development, some got into environment. So that was the first time I came to know कि this is testing। और वहाँ पर फिर कुछ लोग थोड़े मायूस भी हुए कि हमारा टेस्टिंग में हो गया। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या हुआ है। तो लेकिन कुछ आई थिंक आई वुड हाईलाइट अ प्रॉब्लम ऑल्सो कि कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी नहीं पता, राइट, जिन्होंने हमेशा डेवलपमेंट में ही किया है। तो मेरी टीम में मेरी एक फ्रेंड फ्रेंड मतलब वहाँ पर हम बने तो उसका हुआ, और उसका इंटरव्यू जिसने लिया था दैट पर्सन वाज अ डेवलपर। तो वो उनसे जाके बोलता है अरे तुम्हारा टेस्टिंग में हो गया। अब उसको पता ही नहीं है कि टेस्टिंग है क्या चीज़, राइट। और तुम जाके राइट किसी को बोल दो कि तुम्हारा टेस्टिंग में हो गया ऐसे क्वेश्चन, और द पर्सन इज 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, राइट। तो दैट वाज लाइक कि हाँ मतलब कुछ तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दो शी वाज हैप्पी आफ्टर फ्यू ईयर्स कि हाँ सब, बट ना मेरा तो कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। आई एम हैप्पी डूइंग इट फॉर द लास्ट 15 years, 5 years in Microsoft, and before that also 2 companies I have worked with in various domains, insurance, telecom। और QA टर्म तो आई थिंक मैंने वही तभी आगे सुना था, एंड बिफोर आई जॉइंड द कंपनी आई डिडंट नो कि ये क्या होता है। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई रियलाइज्ड कि QA के पास थोड़ा बड़ा पिक्चर होता है। सो व्हाट यू सी, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। लाइक देयर वाज सम डेवलपमेंट थिंग केम एंड डेवलपर टोल्ड कि मैंने इफ कंडीशन चेंज कर दिया। अब उसे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कौन कस्टमर है, क्या होगा। दे आर लाइक कि तुम देखो कैसे टेस्ट करना है, क्या करना है और ये चीज़ क्या है। मेरे को तो मेरे सीनियर ने बोला था ये इफ कंडीशन चेंज कर दो, मैंने तो जाके कर दिया और थोड़ा बहुत कुछ यूनिट टेस्ट कर लिया है। तो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट फील्ड, नॉट टू डिग्रेड की डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, राइट। सो देर आर गुड पीपल एवरीवेयर एंड डूइंग ग्रेट स्टफ देयर, बट आई लाइक द थिंग्स आई एम डूइंग। यानी डिग्रेड तो नहीं कर रहा है गैस, लेकिन मतलब कर तो डेवलपर करते तो नहीं है अच्छा। एज अ फील्ड तो नहीं डिग्रेड कर रहे। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई लाइक हम QA तभी तो है कि Correct. वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं हम उनको देख सकें। That Correct, the correct. word that Manish said, right? Many times when you start to tell somebody that I'm in testing, वो पहला रिएक्शन होता है अच्छा तुम टेस्टिंग में हो। And you know that is I think so where a lot of people you know kind of take it कि या मतलब मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, क्या बुरा कर दिया, क्या एग्जैक्टली बुरा कर दिया, मेरे को टेस्टिंग में डाल दिया, राइट। that is that question right there, you know, it's like kind of for a lot of people it is like have I made the wrong career choice, because I've seen many freshers, right, when they come into the system and when we tell them you will be testing something, they're like from testing में आ गए। एग्जैक्टली होता है ये। सो चलो मूव करते हैं अब। काफ़ी हमने ना इंडस्ट्री चेंजेस देखे हैं। मोस्टली हम 6 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 12 साल एक्सपीरियंस लोग हैं आज हमारे साथ। तो काफ़ी चेंजेस देखे हैं। जब हम पास आउट हुए थे कॉलेज में या कॉलेज में जो पढ़ा था वो तो बहुत ही डिफरेंट था QA में। और उसके बाद जब हमने अपनी जॉब स्टार्ट की फर्स्ट जॉब वाज डिफरेंट, और अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या हमने मेजर चेंजेस देखे हैं इन रिसेंट ईयर्स, या फिर आपने अपने करियर में जो कि आप पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, या कुछ एडवांस हुआ है, या कुछ आपको लगता है कि जो चीज़ हम पहले कर लेते थे बट अब वो नहीं हो पाती। डिग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन है, तो उस पे हम थोड़े बातें करते हैं। तो पहले आई थिंक सुनीत से उनके थॉट्स लेते हैं। मैं तो मतलब I've seen, I don't know if it is a degrade or an upgrade, but मैंने तो मतलब personally I've lived all those changes. So I started off as a mobile application tester in 2000, back in 2008-9. और उस वक्त I was testing Nokia Symbian phones. फिर iPhone आया, फिर iPhone के बाद Androids आए। तो और
मतलब टेस्टिंग का ओवरऑल अभी हमने बात की राइट कि ओवरऑल परव्यू वाज कि मतलब इट वाज मोस्टली अ रिलीज इंजीनियर काइंड ऑफ कि मतलब एक बंदा है जिसको आपने दे दिया क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए और बस वो हाँ बोल दे और लाइव लेके जाओ क्लाइंट के पास ले जाओ राइट ठीक है ताकि यू हैव वन फॉल गाय कि बस इसने किया था टेस्ट मेरे डेवलपर का तो बुराई कोई नहीं करेगा तो वो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज चेंज आई थिंक ब्लेमलेस आरसीएज और वो सब की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ उसमें कैसे टेस्ट करते थे उसमें बहुत चेंज हुआ सो व्हेन आई यूज्ड टू टेस्ट मेरे को देयर वाज नो ऑटोमेशन मोबाइल एप्स में तो बिल्कुल भी ऑटोमेशन नहीं क्यूटीपी और एचपी ये सब आए थे तब फॉर आई गेस डेस्कटॉप ऑटोमेशन हो गया सेलेनियम भी आया था तो वेब के लिए आया था तो मोबाइल ऐप्स के लिए कोई ऑटोमेशन टूल नहीं था तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू टेस्ट ऑन 10 डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट वाइड वैरायटीज मतलब आईपैड से लेकर एक मोटो फ्लिप आता था इतना छोटा स्क्वायर शेप का ठीक है तो फ्लिप होके घूम के खुलता था वो स्क्वायर शेप का तो वहाँ उस फॉर्म फैक्टर से लेकर आईपैड के लेवल तक मतलब एक डेस्क पे मेरे ऐसे सजा के रखे होते थे और मैं एक टेस्ट केस एक्सेल शीट से देखता था या फिर टेस्ट ट्रेल से और उसके सारे बटन क्लिक करते हुए चलता था उसके ऊपर तो मैं उसको एक दो से तीन तीन 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते मेरे को टेस्टिंग में लगता था उस पूरे एक जर्नी को एक सारे एप्लीकेशन सॉरी सारे डिवाइसेस पे दैट हैज चेंज्ड ब्राउज़र टेक के आने से क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग जैसे टूल्स आ गए स्मार्टवेयर वाले उससे बहुत चेंजेस हुए फिर फ्रंट एंड से फोकस शिफ्ट हुआ बैलेंस शिफ्ट हुआ एपीआई मैंने ये चीज़ें और भी पहले भी बताई है दूसरी जगहों पे जब मैं कनेक्ट करता हूँ लोगों से तो फ्रंट एंड से शिफ्ट करके एपीआईज में चले गए लोग एपीआई बहुत टॉप हैवी हो गई एपीआई बिजनेस लॉजिक हैवी हो गई फिर उससे भी बियॉन्ड ईटीएल टेस्ट आ गए जहाँ पे डेटाबेस लेयर पे भी टेस्ट होने लग गए कि आपने अगर माइग्रेशंस करने हैं या फिर ट्रांसफॉर्म करना अपना डेटाबेस या फिर अपना स्टैक रीस्टैक करना है रीस्ट्रक्चर करना है रीआर्किटेक्ट करना है सॉरी तो फिर वो उस लेवल की चेंजेस आ गए थे परफॉर्मेंस टेस्टिंग बिकेम मोर प्रोमिनेंट फिर यूआई यूएक्स बिकेम मोर प्रोमिनेंट मतलब ये सारे चेंजेस होते गए और मैं इनमें मतलब किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी एंगल से कंट्रीब्यूट करता गया तो आई काइंड ऑफ got to have an exposure of all these things that happened even so much कि ऑटोमेशन भी आया तो ऑटोमेशन में भी कैसे करना है पहले आईडी चलता था ब्राउजर का एक छोटा सा प्लगइन था अभी भी बहुत फेमस है मैं आज मेरी टीम अभी भी यूज करती है मैं अभी भी बोलता हूँ जिसको मतलब whoever does not know कोडिंग आईडी यूज करके स्क्रिप्ट बना लो उसको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे पहला काम ऑटोमेशन है किसको फर्क पड़ता है ऑटोमेशन कैसे हो रहा है आरओआई बाद में देखेंगे पहले लेवल पे अचीव कर लेते हैं सो उसमें काफी चेंजेस आए पीपल टाइटल चेंजेस बहुत आए टेस्टर्स होते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता था सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर होता था फिर वो टेस्ट एनालिस्ट हो गया फिर क्वालिटी एनालिस्ट हो गया फिर एसजेट आ गए फिर फुल स्टैक एसजेट आ गए मतलब हर जगह चेंजेस तो होते ही रहे मतलब हाँ एक जो इम्पोर्टेंट आई थिंक चेंज आया है वो है टेस्ट लीडरशिप में बहुत बड़ा चेंज आया है आई थिंक a lot of companies beyond a certain stage even in startup industry have started to feel the need of a test leadership or a centralized test leadership in their org that has started to happen a lot because उनको भी पता है कि beyond a point टेस्टिंग को भी और एफिशिएंट किया जा सकता है और टेस्ट लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट नॉट टेस्ट लीडरशिप इंजीनियरिंग लीडरशिप विद स्किल सेट्स ऑफ टेस्टिंग will help a lot right so वो बहुत बड़ा मुझे लगता है चेंज है बिकॉज ऑफ विच क्योंकि आप एक लीडर लेके आ रहे हो टीम में या फिर ऑर्ग में देन पीपल इंटेंड टू drive more value out of it so you have more respect and you have more ears not respect you have more ears to what you have to say and what you have to drive in the org I think that is one ये सारी चीजें तो हुई है मतलब that's एग्जैक्टली लाइक इससे मैं भी थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने भी अपने करियर में जब स्टार्ट किया था तो हम मोबाइल चिपसेट टेस्ट करते थे और मैं एप्लीकेशन टेस्टिंग टीम में ही था तो हम डिफरेंट डिवाइसेस पे कंपेयर करते थे फिर लाइक एक हमारे पास रेफरेंस डिवाइस होता था जो इन मार्केट रन कर रहे हैं और एक जो हमारी कंपनी जो डिवाइस को बना रही है तो हम उस पर एनालाइज करते थे कि कौन से डिवाइस में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ रही है क्लिक करने के बाद इस पर कितना टाइम लगता है ओपन होने में ऐप इस पर कितना टाइम लग रहा है तो ये चीज़ें थी बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है अब एज सच मतलब उन कंपनीज में भी रेफरेंस डिवाइसेस नहीं होती एक बेंचमार्क सेट है ऑलरेडी कि इस बेंचमार्क से आप टेस्ट करोगे या फिर ओपनिंग के लिए और इन सब चीज़ों के लिए पहले हम बैठ के एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना वो एक एक डिवाइस में करके देखते थे अब वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई है तो
ये काफ़ी चेंजेस हैं। आप मूव करते हैं राहुल पे, मतलब राहुल आप बताइए आपने क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखे हैं, या फिर जो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि यार ऐसा भी कुछ हो जाएगा, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपने देखा हो कि मतलब बहुत शिफ्ट लिया है टेक्नोलॉजी ने इन योर करियर, मतलब जब से आपने स्टार्ट किया It has gone deeper lot of times. That is what I have seen. It's not unwanted, it's very wanted changes, of course. Because when I see when I think about the days of my starting, it was just कि वो बटन क्लिक करके देख लो चल रहा है कि नहीं, वो बटन क्लिक हुआ तो कुछ खुल रहा है कि नहीं, है ना, वो वहाँ यहाँ पे खुला कि नहीं, वो सही तरीके से खुल रहा है कि नहीं, क्रैश नहीं होना चाहिए. These were the things, right? Now when I see the quality, the amount of work that some people do, that they are going deeper into, you know, that memory analysis, memory leaks, CPU cycles के ऊपर भी काम हो रहा है. Then testers are, you know, kind of doing that deeper level of testing, going right into the operating system fundamentals, right? So it has gone way beyond just clicking something, right? Clicking and checking something. And I think so at times people, you know, kind of you know, used to demean testing by the you just click on things and check, right? Nowadays that I have seen, it has gone a lot deeper. Of course there are companies who will not do that kind of deeper testing. There are still, you know, exceptions to that. But what I've seen over the period of time is that shallowness has gone deeper. People are doing some very really fantastic stuff. There are people who still do that that's not taking away anything from them, but yeah, it has gone deeper into that level where, you know, people want their logical thought process or their technical expertise to be utilized. That's one welcome change that I've seen. The unwelcome change that I've seen, not unwelcome, I would say it's like a lot of people have now gotten into that FOMO thing. Like if somebody is doing that thing, I have to do that, even if it's required or not, right? At times I have seen people change maybe XYZ tool because somebody else is using that in the market and they thought that it's great for them, so it would be better for us too. So that FOMO thing, right, is kind of last 5 years I've seen grown a lot more than what it was when I was, you know, earlier in my career. Now, because obviously the, you know, people have moved to a more social media, you know, kind of shiny thing. Right now, if you see AI also, kind of FOMO thing is going on, that अगर आपने AI यूज नहीं करा तो पता नहीं आपका टेस्टिंग प्रोसेस सबसे घटिया टेस्टिंग प्रोसेस है, राइट? दिस इज द काइंड ऑफ FOMO that people exactly. have created, right? So that FOMO thing बहुत इंक्रीज हो गया इस टाइम पे. प्लेराइट यूज करो, सेलेनियम से काम नहीं होगा. सेलेनियम, like there are people who are writing articles कि सेलेनियम is dead, right? Or playwright is the Exactly. next future, right? So that FOMO thing, like kind of thing, is where, you know, I think so that is some advantage that I see. वो सचिन तेंदुलकर को बाबर आजम से कंपेयर वाला एक वीडियो है ना. एग्जैक्टली. बिल्कुल, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं अब, एडवांस तो हुई हैं चीज़ें, बट ये चीज़ है कि मतलब लोग कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं. उन्हें चीज़ों को यूज़ क्यों करना है ये नहीं पता, बट मार्केट में ये टूल चल रहा है या मार्केट में लोग ये चीज़ यूज़ करने हैं, हमें भी करना है. Right क्यों now, करते हैं, उनका एनालिसिस क्या था, उन्होंने क्या POCs किए, उनको नहीं आइडिया. तो see, तो जिन्होंने ये पोस्ट किया उन्होंने भी तो नहीं पोस्ट, वो जिन्होंने नहीं पोस्ट करते, किया वही तो होता है बात वही है. नहीं See, देते, right now, वही एनालिटिक्स नहीं एग्जैक्टली. दे रहे. right now, तो I would like say every other company, जो भी इधर 4 लोग बैठे हैं ना, और 10 लोगों से आप पूछ लो, who are in testing, right? Every company of theirs will be like हमें AI से कुछ करना चाहिए. Every other company will be saying कि हमें AI से कुछ करना चाहिए. क्या करना चाहिए? Nobody knows कि क्या करना किसी को चाहिए, नहीं right? पता है. Nobody knows what problem we should be solving with AI, but they know कि हमें करना चाहिए. यार हमने क्यों डिस्कस ये? किया था, विल नॉट टॉक अबाउट, मैं भी यही बोलता हूँ अपनी टीम में. Right? Because somebody else is doing that. They've seen in the market, hey, somebody created an API suite out of ChatGPT और LLM. हम भी कर देते हैं. भले that does not suffice us, but हम भी कर लेते हैं. वो हमें कुछ करना चाहिए. So that is the FOMO that has created. Right? एग्जैक्टली. करेक्ट. ओके, सो गौरव, मतलब आपकी जर्नी तो थोड़ी और डिफरेंट रही है. नाउ इन लाइक आप अभी माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं चीज़ों में. इसको मतलब आप कैसे देखोगे कि मतलब क्या क्या आपने क्या एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देखा ओवर योर करियर? तो टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, आई थिंक कि मेजर चेंजेस दैट AI थिंग, राइट, जो मतलब बहुत ही डिफरेंट था, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इतना अच्छा होगा, जो जनरेटिव AI आया है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट टेस्टिंग, आई रिमेंबर कि जब मैंने 15 साल पहले ज्वाइन किया था, तो हमारी हर 2 महीने पे रिलीज जाती थी टेलीकॉम डोमेन में, और एक
प्रोडक्शन टीम थी जिसके साथ हम एक कॉल करते थे। और क्या होता था कि जो CI/CD आ गया, राइट, कि जिसके वजह से यू नीड नॉट टू टॉक विद एनीवन टू डिप्लॉय समथिंग। तो हम उन्हें बताते थे, अच्छा ये नई जॉब आई है, इस जॉब को ना वहाँ पर जाके चला देना। सो दे हैव टू मैनुअली ब्रिंग सम सर्वर डाउन, सर्वर अप, राइट। और जो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था मतलब टेस्टिंग करना, दैट वाज मेड इन C++। तो उसका UI C++ में बना था, राइट। तो आप एक बटन दबाओगे, देन यू कैन लुक अराउंड एंड सी, जब वो बटन का कुछ पॉपअप खुलेगा। और मतलब अभी भी हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, राइट, जो वैसे काम कर रहे हैं और कंपनी कैन नॉट लीव देम बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है और वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा धीरे भी हैं, बट दे आर अ लिटिल स्लो। और आप उनमें कुछ ऑटोमेट भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मे बी QTP दे टोल्ड कि वो उसका कैच नहीं कर पाता है कुछ एलिमेंट्स, राइट। अगर बीच में एक भी फ्लो ब्रेक होगा मेजर वाला, यू कैन नॉट इवन डू ऑटोमेशन। तो आई थिंक जो चेंज आया है वो काफ़ी वाइड हो गया है अब चीज़ें करने के लिए, राइट। मतलब पहले उतना वाइड नहीं था, मे बी API भी थोड़ा बहुत था। हमारा जो APIs थे वो पोस्टमैन से नहीं हो पाते थे। देवर लाइक कि आपको एक सर्वर को उस API का बॉडी पास करना पड़ेगा एंड दैट विल रन दैट वे। हम कुछ सर्वर डाउन कर रहे हैं, अप कर रहे हैं और कुछ ट्रेसेस सेट कर रहे हैं। तो आई थिंक क्लाउड के आने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है क्योंकि सब चीज़ जो है वो पोर्टल्स पे चली गई हैं, आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। कल मैं अपनी कंपनी में कुछ एक प्रोजेक्ट शोकेस डे था जहाँ पर आई वाज प्रेजेंटिंग समथिंग, तो समबडी केम विद अ प्रॉब्लम कि हमें ये टेस्टिंग करनी है अलग अलग टेनेंट्स पे, राइट। सो इट्स लाइक कि आपकी सेम एप्लीकेशन अलग अलग VMs पर डिप्लॉयड है। कोई VM में 16 GB लेट से स्पेस है, किसी में 4 GB स्पेस है। तो नाउ देयर चैलेंजेस कि कस्टमर के पास अलग अलग रीजन्स है, कुछ US में डिप्लॉयड है, कुछ इंडिया में है, बेस्ड ऑन कि कहाँ से कितना ट्रैफिक आता है। नाउ दे मे वांट टू मेक श्योर कि सब जगह सही चल रहा है कि नहीं, राइट। तो अर्लियर दिस काइंड ऑफ टॉक्स नोबडी वाज डूइंग, राइट। नाउ एक्सेसिबिलिटी पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो फंक्शनल के अलावा मतलब ये सब एरियाज हैं जो जिन पे पहले कभी बात नहीं हो रही थी, जो अब अभी खुल गए हैं, राइट। और रिस्पॉन्सिवनेस भी सबको चाहिए, एप्स मतलब मोबाइल फ्रेंडली केसेस चाहिए। पीपल आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी। लाइक कल ऑल्सो एक जगह आई सॉ वन ऑफ द प्रोजेक्ट, US के किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ प्रोजेक्ट था वो। सो वेयर दे आर लाइक they were making software for people who are earning less. Okay. Now, like for their education, let's say in India, it's kind of BPL, right? Below poverty line, or people who are maybe in less income. So they were providing some free services or something by which you can know कि आप कौन से स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। अब जो उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, वो पुरानी वेबसाइट बनी हुई थी, अब उसके पास लैपटॉप तो नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट। तो दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स कि आप किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो फिर उन्होंने उसे कन्वर्ट करके अपना रिस्पॉन्सिव बनाया ताकि वो जो फैसिलिटी है जो आप बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो, वो यूज़ कर पाए। तो these things like making for everyone, so all these things are coming now into picture which earlier nobody was talking about. पहले क्या सॉफ्टवेयर चला जाए बस। तो आई थिंक these are some of the changes I saw. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आई Exactly. एग्री टू हिम। मतलब आई थिंक टेस्टिंग जो है ना, मतलब टेस्टिंग अब पहले जो जैसे कि हम लोग सब मान रहे हैं कि बस वो लाइव चला जाए किसी तरह से, राइट। रिलीज इंजीनियर वाले कैटेगरी में जाता था। अब इट हैज टेकन अ मोर फर्दर रोल वेयर, जैसा गौरव भी और राहुल भी कह रहा है कि एक डीपर एंड फर्दर रोल कि it is more about reliability, making our software and systems more reliable, and that is where quality is fitting in. अब पहले क्वालिटी को एक अलग वर्टिकल की तरह या एक अलग एक्टिविटी की तरह देखा जाता था, अब वो रिलायबिलिटी के अम्ब्रेला में एक बहुत क्रूशियल स्टेप आ गया है। आई थिंक दैट इज व्हाई वी आर सीइंग मोर ट्रैक्शन, वी आर सीइंग कम्युनिटीज बिल्ड, वी आर सीइंग सॉफ्टवेयर्स बीइंग बिल्ट विद क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी माइंडसेट फर्स्ट। सो आई थिंक उसका भी आई एग्री, बहुत वेरी वैलिड। आई एग्री सुनीत। ये है कि मतलब पहले मोस्टली QA के पीपल को था कि ये साइन ऑफ देंगे, बस ये साइन ऑफ कर देंगे, हमारा सॉफ्टवेयर आगे चला जाएगा एंड कुछ होगा तो हम इन पे डाल देंगे। Right. ये एक माइंडसेट था इन द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर भी मैंने ये चीजें देखी। बट अब धीरे धीरे यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, कितना रिलायबल है आपका सॉफ्टवेयर, एक्सेसिबिलिटी कितनी है डिफरेंट सही बात है। कम्युनिटीज के लिए, तो ये चीजें अब धीरे धीरे मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स भी और मतलब हायर मैनेजमेंट भी समझने लगी कि ये भी एक क्वालिटी का ही पार्ट होता है। ओके, सो अब मूव करते हैं। मतलब आजकल एक ईयर एंड चल रहा है, तो एक ट्रेंड है कि ईयर का रिकैप डालते हैं। आपने स्पॉटिफाई रैप देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा कि आप पूरे ईयर ये गाने सुने या आपने पूरे ईयर में इस आर्टिस्ट को ज्यादा देखा है, सुना है। तो हम भी थोड़ा कुछ एक वैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मतलब हम डिस्कस करेंगे कि आपने
इस कमिंग मतलब लास्ट ईयर में 2024 में क्या मेजर चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सुनीत से कि मतलब आपने क्या सिग्निफिकेंट चेंज किए हैं, मतलब इम्प्लीमेंट किए हैं जो अपने क्यूए प्रोसेस में, अपनी टीम में या फिर अपनी कंपनी में, जो कि मोस्टली आपने 2024 में ही किए हैं। वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब 24 में अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि चेंज हमने इम्प्लीमेंट किया है, एंड ऑब्वियसली मतलब इट वाज वेरी नीडेड ऑल्सो। जो मैं पिछले कुछ मीटअप्स में भी मैंने बोला है कि देयर इज अ वेरी लिमिटेड व्यू ऑफ मेजरिंग क्वालिटी, एंड इवन सो कि जो क्वालिटी का बंदा या टेस्टिंग का बंदा जो काम भी कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे एवेलुएट कर रहा है, तो वो भी बहुत सब्जेक्टिव एक आउटलुक होता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। मतलब ओपिनियन बेस्ड, मोस्टली ओपिनियन बेस्ड होता है। तो जो OKRs और गोल सेटिंग हमने करी है फॉर द क्वालिटी टीम मेंबर्स और फॉर द क्वालिटी, और सक्सेस क्या है क्वालिटी के लिए, और कैसे वो हाउ आई एम मेकिंग द पर्सन सक्सेसफुल एंड हाउ आई एम मेकिंग द प्रोडक्ट सक्सेसफुल और द बिजनेस सक्सेसफुल। तो ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल GTM मेरे OKR का एक हिस्सा है कि फॉर एक मेजर बता देता हूँ कि हमने कहा है कि वी हैव टू ब्रिंग द रिलीज टाइम डाउन by under 15 minutes, deployment time by under 15 minutes. If we are going to bring that kind of change, we need automation. Not just automation, we also need better build pipelines. We need to faster application compilation. तो वो सारी चीज़ों में क्वालिटी इंक्लूड हो जाती है, rather than saying कि ऑटोमेशन करो 90% चाहिए, Exactly. राइट। एक्चुअली उसको यूटिलाइज करना और बिजनेस के लिए ड्राइव करना, दैट इज दीज आर द काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ OKRs और गोल्स दैट आई हैव सेट अप, वी हैव सेट अप रादर, मतलब टीम से ही गोल्स आए थे इस तरह के। सो दैट इज वन थिंग। मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जॉस्टिव और काफ़ी अच्छे किस्म के गोल्स हमने रखे हुए हैं। दैट इज वन, आई थिंक इट इज अ विन फॉर माई टीम, एंड प्रॉब्ली इफ आई टॉक अबाउट अदर्स ऑल्सो, इफ वी स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दैट फॉर अदर्स, आई थिंक दैट विल बी अ विन फॉर देम। सिर्फ ये कहना कि यार इस बंदे ने तो 700 बग डाले, अब वो 700 में इनवैलिड कितने थे, 700 में एक्चुअली ड्राइव क्या किया, वो P0 थे, P2 थे, P2 डाल दिए 700, या फिर ऑटोमेशन 90% कर दिया, यूज होता नहीं है, जिनकी जॉब भी नहीं चलती उसकी। सो रादर देन हैविंग दीज काइंड ऑफ वेग टारगेट्स और OKRs और गोल्स, तब थोड़े और टेंजिबल, थोड़े और बिजनेस को इम्पैक्ट करते हुए गोल्स को अगर सेट करते हैं, तो दैट इज वन थिंग। टेक्नोलॉजी वाइज या टेस्टिंग टेक वाइज, सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमारा टेस्ट ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत वीक था। So we have incorporated reporting to report portal करके एक open source tool आता है। हाँ, So report we have portal started right? to, हाँ, so we have onboarded that. क्योंकि हमारा startup है, तो we had very limited view of how many test cases we are adding every week or every sprint or every quarter on quarter basis. तो वो track करना शुरू किया, तो we have started to onboard test rails, इस तरह के process हमने डालना शुरू किया है, and we are going to link report portal to test rails also. Other than that, we have started using क्या बोलते हैं अपना, there is a tool called, अब मैं बोलूँगा it is cliche, but AI based tool है एक, for but it is actually good। वो उसमें हमने we are not using it for test automation। तो हम उस AI based tool से हमने क्या किया, उसका जो plugin आता है, there is a VS Code plugin for that tool, and we have actually created a process with that VS Code plugin for developers। अब हमने उन्हीं को दे दिया है कि वो तुम टेस्ट केसेस इसे बना लो Okay. for APIs, राइट। सो अब इसमें AI इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस क्वालिटी या टेस्टर वाला जो प्रोफाइल है, वी आर ट्राइंग टू रिमूव डिपेंडेंसी ऑफ अ टेस्टर टू टेस्ट एवरीथिंग, और रिलीज के पहले वो साइन ऑफ वाला कल्चर की, मतलब ये साइन ऑफ देगा, इसने रिलीज नोट बनाना है, इसी को साइन ऑफ देना है, वो चीज हटाने के लिए वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग लेफ्ट एंड इनेबलिंग आवर टीम्स, चाहे वो नए टूल्स बना के हो, चाहे खुद के टूल्स बाहर से टूल्स लेके आने हो, उस तरह से वी आर वर्किंग, दैट इज द डायरेक्शन वी आर गोइंग। तो इस तरह के चेंजेस हमने पूरे साल में किए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हाईफाई या बहुत अपवर्ड ट्रेंड्स नहीं दिखाए हमने, बट येस देयर वाज स्लो एंड वेरी सॉलिड स्टेप्स दैट वी हैव टेकन इट। सो अब गौरव से पूछना चाहूँगा मैं कि वो पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी यूज़ करते हैं एआई को, या फिर काफ़ी एक्टिव हैं कंटेंट क्रिएशन में, और इवन मतलब वर्क में भी टेस्टिंग स्ट्रेटजी बनाने में, ऑटोमेशन बनाने के लिए। लास्ट मतलब 1 ईयर में 2024 में एआई को उन्होंने कितना यूज़ किया है, कि एआई से बेनिफिट कितना हुआ है, या एआई से कितनी हेल्प मिली है एआई को अडोप्ट करने से। तो
जो लास्ट 1 ईयर का आपका रिकैप है वो कैसा रहेगा? तो काफ़ी हेल्प हुई है आई थिंक। इवन जो मैं वीडियो एडिटर यूज़ करता हूँ वो, आप एक वीडियो एडिट कर लो उसके बाद वो खुद ही 5 टाइटल सजेस्ट कर देता है, राइट? कभी-कभी आपको लगता है ना कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइटल यू शुड पुट, राइट? तो इफ समबडी इज़ सजेस्टिंग इट्स लाइक इनबिल्ट, राइट? तो मतलब ऑटोमेशन में व्हाट वी डू इज़ थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ योर थिंग विदाउट यू बॉदरिंग अबाउट इट, राइट? जैसे हम जाते हैं तो सेंसर लगा होता है, गेट अपने आप खुल जाता है। नाउ यू नीड नॉट टू बॉदर कि गेट खुलेगा। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली, लाइक एक स्टेप वहाँ पर कम हो गया कि मैं गूगल पे लिखूँ या मैं खुद सोचूं कि यार मतलब मैं यहाँ पर क्या बेटर लिख सकता था यार, व्हाट इज़ द बेटर टाइटल। तो देयर एआई हैज़ हेल्प्ड। और रिसेंटली लाइक मतलब एआई तो मैं डेली आई थिंक चैट जीपीटी आई ओपन डेली, एंड इन माइक्रोसॉफ्ट इट्स लाइक कि इट्स पार्ट ऑफ योर एवरीथिंग। हमारे यहाँ एआई जो है सो टीम्स में भी इंटीग्रेटेड है। So GitHub Copilot is there for teams. So what it does is, मान लो मैंने आज एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, राइट? तो आई आस्क द क्वेश्चन कि गिव मी द समराइजेशन ऑफ ऑल द मीटिंग्स। So it can read the transcript of all the meetings which were recorded or transcribed, and it will give me कि what are the action items for you, right? So which makes my life very easy. तो अब क्या वो, that was a search only. Now intelligence is there in search, कि वो बता के दे रहा है कि अच्छा आपको ये है, आपके लिए ये एक्शन आइटम्स हैं। और हम मीटिंग को भी अब ऑलमोस्ट रोज ट्रांसक्राइब करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप भूल जाते हैं, राइट? आप कि मतलब व्हाट वाज द एक्शन आइटम फॉर यू, या आपके नोट्स, इट इज टेकिंग द नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट? और कभी कभी आपके पास अगर आपके 2 ओवरलैपिंग मीटिंग है तो देर इज ऑलरेडी नोट्स फॉर यू, जिसे आप रीड करके यू कैन गो थ्रू इन अ बेटर वे। मे बी आप खुद भी उतना उस टाइम पे नहीं कर पाते जितना वो कर देता, राइट? और रिसेंटली मुझे कुछ एक रीरन कराने थे, राइट? वी हैव कि बहुत सारे केसेस फेल हो गए, तो आप रीरन करो तो दे आर फ्लेकी, समटाइम्स दे गेट पास, राइट? ऑब्वियसली वी शुड फिक्स देम ओवर अ टाइम, बट मीनवाइल परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा डाउन जा रहा था, एंड वी वर यूजिंग आई थिंक एन यूनिट और समथिंग, जिसमें वो मतलब उसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं था। सो इट एन यूनिट वाज, उसका डॉक्यूमेंटेशन कह रहा था कि अगर कोई असर्शन से फेल हुआ है विल नॉट रीरन इट, राइट? और अगर एक्सेप्शन आया है तो देयर वर सम कंडीशंस कि आप उसका रीट्राई मैकेनिज्म यूज नहीं कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एआई, अगर आपको चीज़ें पता हैं कि ऐसे हो सकती हैं, तो एआई विल डू द हाफ वर्क फॉर यू। तो व्हाट आई डिड इज आई आस्क्ड टू क्रिएट अ पावर शेल स्क्रिप्ट, कि पावर शेल बना दो बाय विच आई विल पास ऑन द टेस्ट केस नंबर एंड इट शुड रन इट। तो इट टुक मी ओनली अ सिंगल डे और 1.5 डे, राइट? उसके बजाय कि मतलब उसने वो रीरन का प्रोसेस दैट वाज मेड वेरी इजी, राइट? और चैट जीपीटी से लर्निंग हैज़ बिकम ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो इस इंटरव्यू में मैंने कुछ नया टर्म सुना, राइट? लेट्स से नो समबडी डोंट नो व्हाट इज कराटे। सो इफ दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अगर आप खाली कहीं डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हैं क्यू में, अगर आप उससे पूछेंगे कराटे क्या है, राइट? तो विथ 3-4 कन्वर्सेशन यू विल गेट द आइडिया कि क्या चीज़ है ये कराटे, राइट? तो दैट इज वेरी हेल्पफुल की। एंड द अदर थिंग इज कि अर्लियर वी वर गोइंग टू स्टैक ओवरफ्लो विद द प्रॉब्लम, और वहां पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता था, बट विद एआई you can easily get the root cause of all that stuff, right, with the information that it gives. So it is helping you a lot, and it is a kind of I think teacher kind of relationship, right? कि आप जो specific चीज पूछ रहे हो आपको उसका आंसर मिल रहा है। अर्लियर गूगल के साथ इट वाज लाइक पहले 10 लिंक आ रहे हैं, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा बेटर है। तो दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन हैविंग द मोर लर्निंग प्लस मेकिंग थिंग्स ईजियर। और ऑल्सो लाइक अब वो लाइक वी यूज द GHCP गिटहब कोपायलट, तो वो कोड में इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। तो कुछ छोटा मोटा यूटिलिटी बनाना, राइट? ऑल द प्रोजेक्ट्स नीड कि मुझे डेट टाइम चाहिए, राइट? सब प्रोजेक्ट्स में डेट टाइम का अलग फॉर्मेट, कोई YYMMDD कुछ ये यूज कर रहा है। तो all those utilities you don't have to go to a browser and Google that code and check that out, right? वहाँ पर Copilot में लिखो and it will give you an optimized code only, which obviously you should test, right? Before उसको भी copy paste नहीं करना है। So all these things have helped actually, and I think it will help more once this become part of your even daily things, like WhatsApp में भी अगर ये आ गया, right? Let's say मैंने आज WhatsApp नहीं देखा कि what are the missed things, and it will come soon definitely. I think अभी वो इसलिए नहीं डाल रहे हैं because people will have a concern कि आपका personal data access कर रहा है, right? वो तो when there will be more local agents in AI, so I think this will become even part of it, and even our parents and everybody would be using directly. As of now, they are using indirectly, but I think वो भी directly use करने लगेंगे कुछ टाइम में। हाँ बिल्कुल, ये इस चीज़ से तो मैं भी रिलेट कर रहा हूँ कि एफिशिएंसी तो हमारी बहुत इंक्रीज हुई है।
कुछ भी पहले एक पर्सपेक्टिव होता था कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आप बहुत लोग प्रैक्टिस करते थे अराउंड लाइक कि 5-10 इयर्स उनको एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है उनकी किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अब आई थिंक जनरलिस्ट जो लोग होते हैं जिनको आइडिया है कि होता क्या है, उनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो एआई के पास भी है। मुझे अगर कुछ चीज़ें करनी है तो मुझे लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। कोड तो आई थिंक एआई लिख देगा उसका, आप उसको टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। उसमें चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कि आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत उसको ट्वीक कर सको, उसको टेस्ट कर सको, चेंज कर सको, बट एग्जैक्टली कि मतलब कोड तो आपको दे देगा, आपको लॉजिक पे ज़्यादा वर्क करना है रादर देन कि सिंटेक्स क्या होगा, कैसे एफिशिएंटली लिखना है उस कोड को। तो ये चेंजेस तो बहुत देखे हमने, मतलब लास्ट 1 ईयर से, और जब से मतलब एआई आया है। और एंड इवन लाइक टीम्स का मैंने एग्जांपल लिया, उसमें आई ऐड ऑन कि प्रोडक्टिविटी का इवन इतना इंक्रीज है, लेट से मुझे मनीष का फीडबैक देना, तो आई लास्ट टीम्स को पायलट कि based on our conversation I want to write a feedback for Manish, right? So it can even create that, right? Because I'll not remember each of the incidents we have talked, right? Ki where you have helped me or you have given some help to others, or you have asked me some question. So even like that is a productivity hack, right? It can do the stuff for you. Obviously you'll have to go through it and check it out, so that because लोग आजकल लिंक्डइन पे भी पूरा सब किसी का क्वेश्चन डाल के कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, and there is lot of criticism of AI because of this. So I राइट think yeah, it should used efficiently. एग्जैक्टली। नाउ सो राहुल, आपने 2024 में मतलब कौन सा ऐसा ट्रेंड या कौन सी ऐसी चीजें देखी हैं कि जो जिससे कि आप बहुत सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक स्टार्टिंग अगर आप जनवरी में 2024 में होते, तो अगर आप देखो कि मूव डाउन टू दिसंबर, क्या चीज़ ऐसी देखी कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि इस साल में ये हो जाएगा इन टेस्टिंग इंडस्ट्री और ओवरऑल लाइक इंजीनियरिंग और एनीथिंग? ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगता है कि ऐसे सरप्राइजिंग होगा मेरे लिए कि बहुत राहुल को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है यार, मतलब the thing that the thing is जो एजेंट वाला चीज है ना, that has sped up very rapidly. I thought it will take some time. I'm not surprised because I saw that potential, and I remember at the start of the year Sunit se I had a discussion that how like these test agents are going into come into picture, and people somewhere down the line will utilize it for QA and everything. देख लेना ये वो होगा, right? And then I think the post the first half of the year it was, I think, so quite slow, right, for related to AI and agents. Last year it was like generative AI, everything is generative AI models and everything. This year everybody is talking about agents. There are people who have started companies based on AI agents right now. Right. Don't want to take names, but there are people who have started. you take names now, मतलब कौन सा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो तुम? लो क्या नाम पता कर दें तो भाई, है पता बहुत चला सारे यार। YouTube में स्ट्राइक डाउन मार दिया तो now so that pace has I'm not surprised by it. I thought it will take gather. The only thing is it is taken very rapidly, right? And I posted in I think so LinkedIn about this. I had discussion with Sunil that somebody down the line somewhere someone will utilize it for their benefit for QA, and people are now doing that. So that is something. The pace is something that I thought it would be a bit slow. It has gone exponentially in the last 5 or 6 months that I have seen. बहुत तेज हो गया बोला. Everybody starting from companies like Mook Test, right? They have created their own agents for test automation. ये सब कर रहे हैं. So and there are people कि हमने पूरा टेस्ट एजेंट बना दिया है, हमने QA के लिए एजेंट बना दिया, परफॉर्मेंस के लिए भी एजेंट्स बनने शुरू हो गए हैं AI एजेंट. So that is something that I was not surprised. I thought it will happen. The pace is thing that I thought कि थोड़ा सा maybe people will take time, but people have generally बहुत ज़्यादा जल्दी उन्होंने ये कर दिया. That is something that I was not surprised about, but kind of yeah. एग्जैक्टली, मतलब मोस्टली Right. लोगों को ये तो आइडिया था कि एआई होगा, एआई एजेंट होगा, बट जितनी मतलब फास्टली वो चीजें हुई हैं लास्ट वो मतलब 1-2 इयर्स में, वो second थोड़ा half सरप्राइजिंग है। second half of the year जो है ना. मतलब इसीलिए राहुल भी सरप्राइज नहीं होता, शायद मैं भी जैसे अब जैसे गौरव बता रहा है कि ही हैज बीन यूजिंग इट क्वाइट ऑफन, राइट? कि मतलब मुझे किसी का फीडबैक देना है तो इट इज अ फास्टर हैक टू गेटिंग योर स्टफ डन, और वो सब कुछ है। बट जेन एआई का बहुत बड़ा एक चला। अब देखो विद इन दिस ट्रेंड ऑफ एआई, मतलब देयर आर सब डोमेन्स दैट आर
popping up, right? हम्म कोई LLMs पे काम कर रहा था. Rahul himself, he was working too closely and very very deeply towards RAG systems and LLMs and chatbots and whatever, right? Where I saw one of the times when I went to Gaurav in the past, he was working with something with computer vision. He उसमें भी वो देख रहा था चीजें. So there are sub domains including इसमें, मतलब अब ये why I'm not so मतलब मैं इस तरह से नहीं जाता कि यार AI ने सब कुछ तोड़ के रखा हुआ है, is because somewhere down the line I believe in build versus, और obviously बोलता हूँ build versus buy में मैं buy पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि there are obviously teams who are focusing all around the year or 5 years focusing on it, और मैं उसमें जाता हूँ. तो मैं देखता हूँ कि यार everyone is coming with half baked solutions. चाहे वो GenAI क्यों ना हो, चाहे वो एजेंटिक मॉडल्स क्यों ना हो, चाहे वो LLMs जो हमारे बना रहे हैं उसमें ही क्यों ना हो, या फिर जैसे नोट टेकिंग है, राइट? आई हैड अ वेरी बैड इंसिडेंट विद नोट टेकिंग, ऑनलाइन नोट टेकिंग. वेरी बैड इंसिडेंट, मतलब मैंने स्पॉन कर दिया, और जनरली स्टार्टअप, मतलब पता नहीं बाकी कंपनीज में कहता, तो बाकी स्टार्टअप में क्या होता है कि सारे लोग एक साथ बोलते हैं, सब एक साथ बोलते हैं. मतलब एवरीवन हैज आइडियाज एंड एवरीवन स्पीक्स टुगेदर, राइट? एंड नाउ डिपेंड्स हाउ गुड दैट एजेंट इज, डिपेंड्स मतलब वो आपका ट्रांसक्रिप्शन कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है. तो आई वुड स्टिल रिकॉर्ड दैट एंड लिसन टू इट ऑन माय ऑडियो एंड हैव मोर कॉन्टेक्स्ट, राइट? तो मेरे को इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स दिखते रहते हैं, तो हेंस मैं इतनी जल्दी स्विच नहीं करूंगा. मतलब personally I will not go into using these models even if adds मतलब considerable amount of efficiency to my work. I will rather wait for them to mature more and give me more solid use cases to prevent, like, to get into my my phone space, like my real estate, giving it my real estate or my org or in my own personal life. So ये इतने जो ज्यादा ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, मतलब राहुल इज राइट, मतलब अभी कुछ है, कुछ और आ जाएगा, राइट. इसलिए वो सो फोमो क्रिएट होता है. हर तो कोई वो बोल रहा फोमो है, वाला जैसे वो जो है, एक कोई 2-3 एजेंट अभी बीच में बहुत सारे आ गए ना, मतलब वो तो पता नहीं क्या ही कर दे रहे हैं. मतलब खाली वीडियो देख के, उसने फोटोज देख के उसने बना दिया, गॉडली स्पीड पे एकदम सब कुछ कर दिया, और फिर जब मतलब एक्चुअल लेवल की यूज केसेस आते हैं तो वहाँ पे वो, बिकॉज आई हैव टेकन डेमोस फॉर दीस एप्लीकेशंस, सी दैट इज व्हाई आई सेड राइट, फोमो है ना, मतलब इट्स लाइक कि उसने एक प्रोडक्ट बना दिया, सो आई हैव टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, और उससे अच्छा प्रोडक्ट बना, भले दैट इज अ हाफ बेक सोल्यूशन. वी पीपल टेक हाफ बेक सोल्यूशन, उसको बस टैग होता है कि एआई, एंड दे पिच इट टू पीपल इन द मार्केट, एंड आउट ऑफ 100 पीपल एक तो होगा ही जो उसको खरीद लेगा, सो यू हैव रेवेन्यू, राइट? सो दैट इज लाइक, वही मैं फोमो की बात कर रहा था कि ऐसा फोमो हो गया, राइट? दैट इज सेइंग कि पीपल आर selling solutions here and there, कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, सो हो जाएगा. Now when you actually imply at an enterprise scale or a real world use case, there are not many tools who are actually doing the work that is actually supposed to be. Maybe out of 100, 10 will do or 15 will do, rest 85 or 90% are just wrappers on top of some LLM models, और उसमें वो आपका काम नहीं कर पाएगा. So rest वो अभी जो है मॉडल्स ठीक है, डेफिनेटली देयर विल बी मैच्योरिटी एज द टाइम गोज बाय, मे बी, है ना, 1-2 साल हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए. जैसे अब एलएलएम से अब एलआरएम्स आ गए, राइट? एलएलएम्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे, अब एलआरएम्स आ गए, लार्ज रीजनिंग मॉडल्स आ गए, राइट? मे बी थोड़े टाइम वो एलएलएम्स भी हट जाएगा, एलआरएम्स ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, उससे कुछ नया निकल जाएगा, राइट? अभी सो हम बात दैट कर रहे हैं ना, वो अगले 3 महीने में हो जाएगा वो. हाँ, वो हो जाएगा, हम्म. हो सकता है, बिल्कुल हो सो सकता है. सेम चीज है, मतलब चीजें एंटिसिपेट तो हम कर रहे हैं, बट जिस स्पीड से वो चीजें हो रही है वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था शायद. आज से कि मतलब आज से 3 साल पहले, राइट, देयर वाज दिस बूम इन द मार्केट कि जावास्क्रिप्ट के टूल्स ऐसे निकल रहे थे मार्केट में, एग्जैक्टली. जैसे कि मतलब वो है ना, वीड निकलता है ना सब्जियों के बीच से, कि कोई ये आ गया, कोई ये आ गया, और पीपल वे लाइक, अरे यार मुझे तो जावास्क्रिप्ट सीखना है, इफ आई डू जावास्क्रिप्ट नॉट सीख. लर्न जावास्क्रिप्ट आई एम डूम्ड. एंड 3 years down the line, half, like more than half, 75% of tools are nowhere. Gone. राइट राइट. सो Right. सेम चीज, मतलब लोग अभी प्लेराइट के बारे में बोलते हैं कि अनदर फेलियर तो नहीं है ये. हाँ, वही वही हो सकता है. कमिंग फ्रॉम लाइक वेब ड्राइवर आयो, साइप्रेस एंड प्लेराइट. सो क्या इसकी भी सेम, मतलब कोई एक नया टूल तो नहीं आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वाला और फिर प्लेराइट को भी नहीं पूछेंगे? ये क्या मैं बताओ शायद आगे. इसलिए डरता भी हूँ कि मैं पोस्ट करूँ किसी टूल के बारे में कि यार ये मैंने यूज किया, बहुत अच्छा किया, पता चला वो बैठ गया. There will be It tool. happens, it On a happens. serious note, this is a serious problem. मतलब I don't know what Gaurav has to say or what Rahul has to say about it, but ये बहुत serious problem है. Influencing के चलते, या फिर I don't know कुछ किसी हिडन एजेंडा के चलते, मतलब Money. अगर आप किसी को मतलब
Money. It's all about money, dude. See, it's all about at the end of the day, somebody's peddling XYZ tool because they see that I'm making money Peddling? out of it. Peddling, that I That's a use the good. word peddling. It's just like drug addicts, yeah. They peddle Right, their right. tools here and there कि भाई ये tool खरीद लो या ये कोर्स कर लो. इससे नहीं होगा तो तुम्हारा लाइफ पता नहीं कहाँ ही चला जाएगा. तो there are people who come to me and say, सर अब Selenium का कोई फ्यूचर है. 20 साल हम्म, से चल रहा है वो टूल. देयर इज अ वेरी गुड एफिलिएट कम्युनिटी व्हिच इज सपोर्टिंग इट. पीपल आर यूजिंग इट इन एंटरप्राइज स्केल. क्यों नहीं? अगर आप सीख लो, अच्छे से सीख लो, यू कैन स्टिल डू वंडर्स विद इट. बस सर ये तो प्लेराइट पढ़ा रहा है. आजकल लोग बोल रहे हैं प्लेराइट मुंबई मार्केट में, साइप्रस मार्केट में, यू नो दैट फोमो और इज. इसका एक मतलब नेगेटिव साइड ये भी है कि जितना यूआई ऑटोमेशन को बेचा जाता है ना, कि ऑटोमेशन के नाम पे बस कि ये यूआई ऑटोमेशन है, भाई उतना किसी चीज को नहीं बेचा जाता. बिल्कुल यूआई और एंड टू एंड, ये एंड तो टू एंड सब end जो to है end. ना, एंड टू एंड टेस्टिंग टूल, एंड टू ई टू ई. आई मतलब थिंक थोड़ा आई बेसिक्स भी ठीक नहीं है, इसलिए भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि लोग डरते हैं कि मुझे सेलेनियम या प्लेराइट या कोई नया टूल आएगा तो मतलब बहुत बार टॉप मिड पे लोग जब मेरे साथ कॉल कर रहे होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. मतलब इट्स लाइक अगर वो कोई भी ये सब टूल है ये कर क्या रहे हैं, एक ब्राउज़र कोई तो ऑटोमेट कर रहे हैं ना. ब्राउज़र में आप एग्जैक्टली. क्या करते हो, आप कुछ एड्रेस डाल दोगे, कोई गेट बोल देगा उसको, कोई वो कुछ एंटर नाम दे देगा, राइट क्लिक का कोई कुछ नाम दे देगा, कोई टाइप कह रहा है, कोई उसको सेंड कीज कह रहा है. तो बिल्कुल. मतलब कॉन्सेप्ट वाइज इट इज़ द सेम, राइट. Yeah. जस्ट लाइक कि जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि यार मैंने i20 सीखी है. यू लर्न द स्किल ड्राइविंग, Yeah. राइट. तो उसी तरीके से प्लेराइट, सेलेनियम, ये सब दे आर लाइक कि ये टूल्स हैं, आप ऑटोमेशन सीख रहे हो. तो अगर आपने एक जगह कॉन्सेप्ट ठीक सीख लिया तो वो कहीं भी चल जाएगा, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा टूल, कौन सी लैंग्वेज. थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट Absolutely. चेंज होंगे जिसको मतलब 1-1.5 हफ्ता आपको लग सकता है सीखने में, राइट, बट यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, अब पास्ट की बातें हम कर चुके हैं, अब थोड़ा हम फ्यूचर की तरफ जाते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है. सबसे पहले मैं मतलब सुनीत का एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा. एआई जो आया है, क्या मतलब हम उसको एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट मान सकते हैं, जैसे कि मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग आया था या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो क्या मतलब एक मेजर चेंज जो कि हमारी चीज़ों को बदल देगा या बहुत रेवोल्यूशनाइज कर देगा, तो क्या मतलब आप में से आप एग्री करते हो इन चीज़ों से या डिसएग्री करते हो? वन बाय वन. पार्शली एग्री करता हूँ, आई मतलब स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि एज अ इनोवेशन की कैटेगरी में तो मतलब 10 on 10, मतलब ऑफ कोर्स. और मैं भी कोई चार्ट देख रहा था, तो इनोवेशन इन इटसेल्फ विल नॉट बी इनफ फॉर एनी टेक्नोलॉजी टू बी हैपनिंग, राइट. मतलब एग्जैक्टली. उसका एब्जॉर्प्शन या अडेरेंस या फिर एडॉप्शन जिसे कहते हैं हम, वो भी होना बहुत जरूरी है, राइट. ब्लॉकचेन भी इनोवेशन की कैटेगरी में 10 on 10 ही है, बाय द वे, राइट. एआई का मतलब आई डिड नॉट नो, दिस वाज न्यूज़ फॉर मी कि 1963 से काम चल रहा है. एग्जैक्टली. हाँ. पीपल आर वर्किंग ऑन एआई सिंस 1963 एंड मतलब अब जाके उसमें जो बूम आ रहा है, बिकॉज प्रॉब्ली लोग वहाँ पे तब उतने लोग भी वर नॉट सो इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा फ्लो भी नहीं करता था शायद उस टाइम पे, बट इट इज़ दैट काइंड ऑफ ओल्ड एज टूल, मतलब है ना. तो हाँ, इनोवेशन वाइज तो यस. एडॉप्शन में आई वुड स्टिल स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम जंपिंग डीप इनटू इट. हमने बहुत केयरफुल स्टेप्स लेके, बहुत सारा एवेल्यूशन करके, एटलीस्ट भारत पे हम टेलिंग, बहुत सारे एवेल्यूशन करने के बाद हम एपीआई को के ऑटोमेशन पे या एपीआई के टेस्ट को अब एआई को एक्सपोज करना जा रहे हैं, मतलब एआई को या फिर एआई बेस्ड किसी एक टूल के ऊपर हम एक्सपोजर देना चाह रहे हैं, बट आफ्टर ओनली चेकिंग ऑल द पॉइंट्स और द रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव इंटरनली एंड देन इवैल्यूएटिंग देम. तो हाँ, मतलब इनोवेशन 10 on 10, adoption और jumping onto it, learning about it, I would still hold back. I would still see कि कैसा ट्रेंड चल रहा है, फाइनली क्या आपके यूज केसेस को रिक्वायर्ड है, आपके फ्यूचर करियर को क्या रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से इशू रहा है. ओके. बाकी राहुल, आपको क्या टेक है इस चीज़ पे? I think so. I'm in the same boat as Sunit, right? From an innovation perspective, right? It is great. Like I use it day to day wise, right? Definitely. If I have to say कि मुझे मैं use करता हूँ, definitely use करता हूँ. Like I have seen it help me in a lot of scenarios. I'll give you one example is uh, regex. Regex. I struggle with regex. I have struggled a lot with regex in my past life, right? Not past life, in my past of working experience, right? Now with chat GPT or models like Claude and everything, right, it has become a breeze to generate and understand regex. I still remember uh,
3 years before, when I was in my firm, we had like 3 or 4 sessions on regex only on regex कि regex होता क्या है, बनता क्या format है. There was somebody who taught regex. Now all of that 3 to 4 sessions I have done it in single hour or a single day, because of the power of large language model. So that understanding from a technical perspective is very good, right? It helps me a lot in understanding. Like if you are unable to understand a problem, just give it to a model and say ki break it down into step by step, give me a dry run. It will give you a brilliant dry run. It will give you a brilliant dry run of a specified program, right? Of a specified logic. The thing about implementing is that I am skeptical. I'm not skeptical. I want to evaluate more further on what are the capabilities that it can benefit me on a long run, right? Definitely programming ho gaya, but programming is not only testing, right? Testing is much more than that, right? So how far that it will help me in that logical reasoning? Because as of now, right, there is a huge debate in, if you follow LLM people, there's a huge debate whether LLMs can actually reason. It cannot reason right now, right? But with models like LRMs that I'm talking about, like large reasoning model, whose sole purpose is to reason, right? If like those are beneficial, if those can reason, अगर हो सकता है, right? क्योंकि अगर वो inquisitive mind को deliver कर पाए अपने model के through, maybe that will be helpful for me in future, या 3 months down the line, as Sunil said, क्या बताओ 3 month में आ जाए, right? People are right. very fast right now, right? The amount of computational resources people are getting, right? And the amount of money that is being thrown to AI right now, AI. right? So it might happen in 3 months or 6 months, right? So that might bring about a shift in mindset कि हाँ हमें might use it right now. Maybe for certain specified use cases, definitely I can go to them and solve my cases. On a longer run, maybe a bit skeptical about it. Maybe that, and this position of mine is like flexible. Maybe 6 months down the line, I would be like, okay, I'm ready to change my mindset. I've seen the change. I've seen the impact that it has created in my company, in my testing process. Maybe I can believe on it, right? So that can change, but right now, that's not the case. Got it. गौरव आपको क्या लगता है, मतलब AI एक सिग्निफिकेंट चेंज है या ठीक है, टेक्नोलॉजी में ये होता रहता है? नहीं, आई थिंक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज है ये. और मतलब मैं बताऊंगा, मैं किसी के घर गया था और एक मतलब द गाय इज इन 9th क्लास और वो चैट जीपीटी खोल के बैठा था. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं चैट जीपीटी पे. एंड ही वाज लाइक कि कुछ तो भी आजकल स्कूल्स में बहुत ही किस लेवल की वो इंग्लिश या क्या पढ़ाते हैं. तो ही वाज कुछ पोएम का Judges, right? समरी था, बट देयर वाज सम टिपिकल इंग्लिश वर्ड बोनेट और समथिंग. मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कह रहे ये मेरा हॉलीडे होमवर्क है और आई एम जनरेटिंग कि कुछ पोएम मैंने उसको दिया है. एंड ही वाज ऑप्टिमाइजिंग आल्सो. मतलब उसने दिया, वो उसके बाद कह रहा नहीं ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं लिखना है मुझे, ये करना है वो करना है. तो आई सॉ कि उसने 5-6 हाँ. प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं. तो मतलब अगर ये उस लेवल तक आ गया है तो कमिंग जनरेशन वुड बी टू मच इन्वॉल्व और टू मच डिपेंडेंट ऑन इट. उसका एक मतलब नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप बिना समझे भी कभी कभी कर सकते हो, राइट? क्योंकि कभी कभी वो Right. गलत आंसर भी दे देता है. सो अभी तो एक क्वेश्चन है छोटा सा कि ठीक है, अभी तो जो हम देख रहे हैं कि लाइक कोड जनरेशन है या जेन AI वाली चीज़ें हैं, उसके अलावा सेल्फ हीलिंग भी है, अगर हम टेस्टिंग में देखेंगे तो ये सब चीज़ें प्रमोट हो रही है. बट ठीक है, ये तो है, बट आप ऐसा क्या देखते हो कि मतलब अगर आने वाले 3-4 साल में कि हो सकता है कि बहुत ही ड्रास्टिकली कुछ ज़्यादा ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी? मतलब ऐसा कुछ विजन है या आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इससे भी बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं? ऐसा कुछ है हाँ, सुनीत आपके माइंड में, मतलब इमेजिनेशन कोई? मैं विजनरी तो देखो हूँ नहीं, और लेकिन यस, मतलब मुझे क्या लगता है कि एक चीज जो मेरी पहले भी बात हुई है तुम लोग से बीच में whenever we connected, I've seen that, जो रिसेंटली बात भी कर रहे थे कि 3 से 4 साल में कुछ रेवोल्यूशनरी हो चाहे ना हो, आई गेस मैनुअल लेबर का जो कॉस्ट है ना, इट इज गोइंग टू इंक्रीज. राइट. सो तो वो तो मैनुअल, हम जनरली सोसाइटी में अभी भी देख रहे हैं, जो लोग मतलब जिनका स्किल्स है ना कि वो हाथ से कुछ चीज़ें करते हैं,
उनका हाँ। पोस्ट बढ़ता जा रहा है रादर देन जो आप Customizations. आईटी इंजीनियर और इन सब चीजों को देखोगे, उनका एक मतलब एक ग्रोथ है, बट उनकी ग्रोथ में ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल वो है, बट आप हाँ। बाहर जाकर टैटू देखोगे आर्टिस्ट 100 रुपए इंच से लेकर अब 2-3 हजार रुपए Exactly. इंच तक चलता है हाँ, मामला, वो तो नहीं, 10 जो हजार रुपए इंच स्टिचिंग तक भी करते चलता है। हैं या फिर नहीं, कुछ नहीं, भी, मतलब आप टेलर के पास चले जाओ, जो भी मतलब इस तरीके की चीजें करते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है। हाँ, अभी अब ऐसा ना अभी लोग मैंने रोस्ट करने लग जाए ऑनलाइन हम लोग को इसके ऊपर कि मतलब मैं टेस्टिंग को टैटू आर्टिस्ट से कंपेयर कर दिया, बट हाँ, Right, right. बट हाँ। इसमें मुझे लगता है कि उसके ना हमेशा बायर कम होते हैं, मतलब इट्स नॉट अ मार्केट, राइट? इवन फॉर एग्जांपल लेट्स से जेम्स बाक, राइट, हु इज देयर इन टेस्टिंग फॉर 35 years or so, right? And he talks very deep, which we can't even, maybe I think many of people in testing could not even think about, right? But now no, now people are not explicitly affording that, right? That talent, maybe few companies are there, even हम जो हाथ वाली बात कर रहे हैं कि वो भले ही वो चीज़ महंगी मिल रही हो, राइट, मे बी मार्केट में 20,000 की साड़ी मिल रही है, राइट, क्योंकि उसे किसी ने बनाया है, कोई उसे 1.5 महीना लगता है बनाने में, बट उसके एक सेम उसकी वो मिल रही है, क्या बोलते हैं, जो कि मतलब 20,000 रुपए की है, राइट, और मे बी 10,000 रुपए या 2,000 रुपए की, जो मशीन से प्रिंटेड है, आपने ऑटोमेट करके वो सेम ही चीज जनरेट कर दी है, राइट? सो मास मार्केट इज फॉर दैट, बट हाँ, मतलब उसका मार्केट, उसका लेकिन मार्केट नहीं बढ़ रहा है। द प्रॉब्लम इज कि पीपल कैन नॉट अफोर्ड, और एवरीबडी इज नॉट थिंकिंग लाइक दैट। दैट्स वाई ना आजकल इंटरव्यू प्रोसेस में टेस्टिंग के क्वेश्चन पहले 3 राउंड तक वो बोल रहे हैं टेस्टिंग का कोई पूछ ही नहीं रहा, राइट? तो जब कॉस्ट बढ़ेगा, बट मतलब मुझे ये डाउट है कि उसका मास मार्केट नहीं आ पाएगा, लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, बट वो होता है ना कि सब लोग एक तरफ भाग रहे हैं, वो प्रॉब्लम रहेगी। नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियसली है, लेकिन जब मास मार्केट की तो बात कर रहे हैं तो आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी मोर एनलाइटेंड लीडर्स एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन टेस्टिंग डोमेन, जो पहले मतलब एक आई गेस इट वाज मोर ऑफ अ very limited circle of people in that category, that layer of in the industry. Now that has grown, and it is going to grow even further at an exponential rate in the next 4-5 years. So they will understand. We people like us, or you, or Rahul, or people thinking like us would be there at some level, right? So वहाँ पे I think there will be a shift. The mass market angle will still be there, but when I say the cost of labor या फिर जो मैनुअल लेबर की मैं कॉस्ट की बात करूँ, मतलब वो फ्रॉम ओनरशिप टू आफ्टर सेल्स वाली बात है, मतलब कि आप एक बंदा लेके रखते हो और एक लाइसेंसिंग लेते हो जो हर साल 3% से बढ़ रहा है या 5-10% से बढ़ रहा है, और उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बंदा ही चाहिए। एआई भी रखोगे तो उसकी भी स्क्रिप्ट्स को मैनेज करने के लिए एक बंदा ही चाहिए, और एंड ऑफ द डे यू आर नॉट सीइंग एनफ आरओआई, बिकॉज द मेजरमेंट अब शुरू हुआ है। देखो ऑनेस्टली, measurement of quality और measurement of these kind of activities are just started. तब पहले ये होता था कि भाई डेवलपर ने बोल दिया कि यार ये बंदे ने बहुत बग्स निकाले, बहुत बढ़िया, दिस इज लाइक 2008-9 की बात कर रहा हूँ, इससे बहुत बढ़िया वही भी बंदा होता है, है, तो वही भी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर खुश हो जाता था, बोलता है अब यार इसका अप्रेजल करना है, 12% से ऊपर करेंगे। सो इट हैज जस्ट स्टार्टेड वेयर, जैसे मैंने बताया ना कि हमने ओकेआर इस तरह से सेट किया, एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री लेवल लीडर्स आल्सो, तो वो चीजें होंगी, और वो शिफ्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो शिफ्ट इसलिए आएगा क्योंकि देयर आर मोर पीपल हु आर गोइंग टू थिंक अलाइक और on a similar lines of respecting manual labor more, या understanding manual labor more, right? तो वो मुझे लगता है, अब जैसे एक बड़ा एग्जांपल मैं देखता हूँ कि रॉयल एनफील्ड है, इट यूज्ड टू सेल हैंडमेड मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स, they shifted to robotic process automation, like robotic manufacturing. Their sales have been depleting. उन्होंने 20 नए मॉडल लॉन्च कर दिए, but their sales have been like depleting. उसका वो जिंक था, उसका मतलब वो मास मार्केट नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब एज अ प्रोडक्ट इट हैज ग्रोन, राइट, ओवर द टाइम इट हैज ग्रोन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि people who are going to think alike are going to grow, and hence the market will also evolve accordingly. मुझे ऐसा लगता है, my view, strictly my view. ठीक है, हमने देख लिया फ्यूचर क्या हो सकता है, बट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लाइक क्या क्या स्किल्स हैं जो हमें अब टाइम आ गया कि मतलब हमें सीख लेनी चाहिए, या फिर कोई सपोज कोई पास आउट, कॉलेज पास आउट है रिसेंटली और उसको क्यूए में जाना है, टेस्टिंग में जाना है, तो क्या चीज़ें हैं जो उसको सीखनी चाहिए ताकि वो प्रिपेयर हो सके इन फॉर कमिंग ईयर्स, और मतलब एआई के लिए या टेस्टिंग के लिए, तो कौन सी स्किल्स हैं जो उसको एटलीस्ट, ये तो मिनिमम है कि ये तो सीखो ही, फिर धीरे 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 ठीक है आप एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करोगे, बट एक मिनिमम स्किल्स जो आप मतलब अपनी टीम में किसी को लेते हो तो देखते हो। स्किल्स
for a fresher, yeah, critical thinking, I think so, is very important. As Sunit also said, that trust building factor जो आ जाता है ना QA में, right? So it start from that personal level, correct? So I think so that क्योंकि even if you are using LLMs to write code and everything, maybe in future ये भी हो सकता है कि ID आ जाए जो तुम्हारा टेस्ट जनरेट करके दे दें, you just need to review that, right? So your critical thinking at time, right? Logical thinking, how strong it is, right? And um, how you correlate it with that context in which that thing is talked about. That I think so is going to be very critical. So when I'm hiring somebody, right, as a fresher or even as a uh, experienced person, I see how he's thinking, right? How his thinking process is all about, right? There are people who are very critical thinkers. There are people who are not so critical thinkers. There are people who do not give up that easy. There are people who give up that easy. So that is going to be the defining factor when it comes to hiring, right? If there is a person who is not able to solve a question, but he is thinking in the right way, he might be the first one to get to the solution, rather than a person who is very good coder but he is not thinking the right way, right? So that's that approach, right? That thinking approach, how he is thinking about it, I think so would be the critical factor. Rest of the other things are, I think so, once he gets to the industry, that are teachable, right? That can be teach, right? आपका tool हो गया वो कोई सीख सकता है, right? Programming language भी वो सीख जाएगा, right? AI जो भी होगा, टूल भी होगा, वो भी सीख जाएगा। जो टूल तो सीख सकता है इंसान, राइट? बट Correct. हाउ दैट माइंडसेट इज ऑल अबाउट, राइट? क्या उसका माइंडसेट कैसा है ना? अगर वो तुरंत ही गिव अप करता है, ऐसे भी लोग देखेंगे तुरंत गिव अप कर देते हैं। अब उनको आप कुछ भी दो, कोई वो प्रॉब्लम में फंस गया, राइट? ही गेट्स स्टक। देयर आर चांसेस ही इज लाइक लीव्स इट ऑल टुगेदर, व्हाइल देयर आर पीपल हु मतलब विल ट्राई टू थिंक। कोई बहुत बार ऐसे भी लोग देखे हैं हु कम आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच, लाइक फॉर कोडिंग सॉल्यूशंस ही मैंने देखा। मैं कोडिंग सॉल्यूशंस के बाद बात करूं, देयर आर पीपल आई हैव सीन इन इंटरव्यूज व्हेन दे गेट स्टक, दे कम आउट विद वेरी गुड आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच। इसको मैं कैसे मैनिपुलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं? एंड आई एम लाइक डेफिनेटली यू कैन डू दैट, दैट इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, राइट? सो मे बी शायद दैट इज अ ह्यूमन स्किल, नॉट अ टूल स्किल। सो वो ह्यूमन स्किल जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से, एंड दैट इज व्हाट आई try to see in a person when I'm interviewing. Tools definitely they can learn here and there given enough time. वो तो हो जाएगा। एग्जैक्टली। सुनित, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि मतलब आप सपोज आपकी टीम है तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि मतलब जो वो 2025 में कि मतलब क्या लर्न कर सकते हैं नया, या फिर किस तरीके से वो इवोल्व कर सकते हैं टेस्टिंग में? सच बताऊं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मतलब जब भी ऑनेस्टली दिस इज वेरी ट्रू। मतलब मैंने जो मैं अभी स्टार्टिंग में कुछ देर पहले मैंने बोला ना कि OKRs हमने बनाया, तो OKRs में मैंने सेल्फ लर्निंग डाल रखा है। सेल्फ लर्निंग 10% has 10% weightage. The Mhm. only thing is that whatever you're going to learn, you have to implement in the next 1 year. तो अगर आप एक्सेल शीट भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीख रहे हो, तो यू हैव टू Right. कम बैक विद अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूडेमी और कोर्सेरा, कोई भी फ्री साइट से भी कर सकते हो। और करके क्या करा है आपने उस एक्सेल शीट का, करा क्या है? डेटा प्रोवाइडर्स को बेटर किया आपने, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क किया, कुछ भी किया, मतलब कोई रिपोर्ट जनरेशन में किया है काम, किसी ने लूपर सीखा है, गूगल लुकर सीखा है, सॉरी लूपर नहीं। तो मैं किसी को नहीं बताता कि तुम्हें सीखना क्या चाहिए। कोई पूछने आता है कि सुनित आई वांट टू लर्न परफॉर्मेंस, दैट इज वेयर आई गेट इन मोर इंटरेस्टेड। देन मैं कहता हूँ कि डू यू वांट टू गो इनटू परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट, डू यू वांट टू गो इनटू परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस, या फिर उस हिसाब से फिर मैं उसको ग्रूम करता हूँ। मतलब वो मेरे लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड मोर ऑफ अ पुल काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड कि क्या सीखना चाहिए। पहले सेल्फ लर्निंग से पहले सेल्फ थोड़ा एक्सप्लोरेशन करके भी आना चाहिए बंदे को कि यार दीज आर द पॉसिबल एवेन्यूज आई कैन गो इन, रादर देन मैं बैठ के 1 घंटा बिठाऊं और उसको सबको ज्ञान दे दूं कि ये भी तू कर सकता है, यू कैन गो टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत पैसा है, सारी चीजें बता दूंगा मैं, लेकिन उस बंदे को सुनने ही दो है, सुनने ही दो बिल्कुल। चीजें हैं। तो Like, तो मतलब दिस इज वन वे ऑफ मी ऑल्सो ऑप्टिमाइजिंग माई टाइम विद माई टीम। तो नहीं एग्जैक्टली। बट हाँ 25 के पर्सपेक्टिव से मतलब इन जनरल व्यू मैं तो यही कहूंगा कि द मोर इम्पोर्टेंट स्किल्स आर टाइम मैनेजमेंट, आई वुड से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको ज्यादा ग्रो कराएंगी करियर में। ठीक है, टेक स्किल्स के अलावा
जो आप हम्म। ऑलरेडी सीख रहे हो, चाहे प्लेराइट सीखो, चाहे सेलेनियम सीखो आप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो नहीं सिखाते लोग। मनी मैनेजमेंट सीखो, यूज दीज, एग्जैक्टली। निगोशिएशंस सीखो। अगर आप करियर में ग्रो करना है, राइट, सिर्फ प्लेराइट सीख लिया और 4 इंटरव्यू क्वेश्चन से अपने याद कर लिए, इट विल ओनली गेट यू दैट फार कि जहाँ तक उसकी यूज है। उसके बाद उसको जब सेल करना आएगा ना एक्चुअली टू द मैनेजमेंट, या फिर उसके फार रीचिंग बेनिफिट्स बताने होंगे, या फिर उसका आरओआई बताना होगा, देन you'll probably suck up। एंड मोस्टली मैं जो देखता हूँ लोगों को, वो यहीं पे, मतलब भारत पे हैज a group of very skilled testers, but unfortunately a lot of them don't have these skill sets। stakeholder management में falter करते हैं, communication skills में कभी-कभी falter कर जाते हैं, larger audience को address करने में मतलब अटक जाते हैं। तो I think 25 should be somewhere, क्योंकि भाई पिछले 5 साल में ना बहुत टूल्स, जैसे राहुल कह रहा था कि they have cropped up like weed। बहुत टूल्स आ गए हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी आ गया है, बहुत सब, मतलब a lot of things are happening। मुझे लगता है इन चीज़ों पे फोकस करके एंड देन हैव अ माइंड मैप ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू लर्न, और उसको रख के ये चीज़ों पे फोकस करो। इट एग्जैक्टली। हेल्प। लाइक लोग बिजनेस से रिलेट करना अभी भी नहीं जानते कि कैसे जो वो कर रहे हैं उसको बिजनेस से कैसे रिलेट करना है। मतलब कि आप वैल्यू कैसे दिखाओगे। ठीक है, आपने प्लेराइट सीख लिया, वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी टीम में, आपकी कंपनी में। और आप सपोज आपको कोई टूल बाय भी करना है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि इससे आपको एक साल में कितना, मान लो आपने $10,000 खर्च किए हैं, तो $10,000 का बेनिफिट क्या है आपकी। आपने 5,000 टेस्ट स्क्रिप्ट बना दी, बट उसका फायदा क्या हुआ कंपनी को, वो $10,000 खर्च करके क्या मिल रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में लोग अभी भी मतलब उतना सोचते नहीं है। तो ये एक एग्जैक्ट, मतलब ये काफी अच्छी एडवाइस है कि मतलब बिजनेस की साइड देखो और जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, रादर देन कि मतलब हाँ ठीक है मैंने प्लेराइट सीख लिया, मैंने साइप्रस सीख लिया, अब मैंने जेन एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, बट आपके काम कहाँ आ रही है, आपकी टीम का फायदा कहाँ कर रही है। तो ये मतलब काफी सही चीज है। ठीक है, तो गौरव अब मतलब आपसे ये क्वेश्चन है कि क्यूए की चीजें जो अब काफी चेंज हो गई हैं। लाइक पहले हम ट्रेडिशनली जो करते थे कि मतलब फंक्शनल टेस्टिंग कर ली, थोड़ी सिस्टम टेस्टिंग कर ली, एंड टू एंड चीजें देख ली। अब एक मतलब वाइड अम्ब्रेला आ गया है क्यूए के ऊपर, जिसमें कि मतलब डिफरेंट रोल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट कि अब आप रिलीज मैनेजमेंट का भी पार्ट हो, अब आपको साइन ऑफ्स भी लिखने हैं, वो तो ठीक पहले भी होता था, बट अब आप जब ग्रूमिंग होती है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है, उन सब में भी क्यूए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि मतलब कैसे इवॉल्व हुई है और क्या क्या डिफरेंट स्किल्स है रादर देन लाइक टेक्निकल पार्ट की, मतलब आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ऑटोमेशन कैसे करनी है, उसको छोड़ के बाकी क्या चीज़ है जो आप स्किल्स को देखते हो कि मतलब इवॉल्व होगी और 2025 में लोगों को सीखनी चाहिए। आई थिंक जैसे सुनीत ने भी बोला कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, राइट, कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जो भी ये डेवऑप्स, एजाइल, ये बहुत सारे टूल्स आए, तो हम सब ने क्या किया, इन टूल्स पे फोकस किया। बट ये सिखाना क्या चाह रहे थे, कोलैबोरेशन। अगर आप पूछोगे भी किसी से कि डेवऑप्स क्या है, तो वो CI/CD और सारी चीज़ें बता देंगे, एंड नोबडी विल टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, है ना। तो कोलैबोरेशन के लिए यू हैव टू टॉक विद पीपल, राइट, यू हैव टू टॉक विद डेव, यू हैव टू टॉक विद प्रोजेक्ट मैनेजर। आपसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। यूएट के साथ यू हैव टू pass on the information, so you should be good in storytelling also, right, कि आपको सेम बात अगर अपने पीयर को बतानी है या फिर किसी और को बतानी है, एक लेवल अबव बतानी है, यानी सेम इन्फॉर्मेशन आपको लेवल 300, लेवल 400 और लेवल 100 पर भी बतानी आनी चाहिए कि किसको कितना डिटेल बताना, राइट। कभी कभी आप कॉल्स में जाओगे और आप ज़्यादा टेक्निकल घुस जाओगे और कोई भी उसमें टेक्निकल सुनने के लिए नहीं आया, तो दे विल गेट डिसइंटरेस्टेड, राइट। तो ये स्किल आपको सीखना है, राइट। और रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग, मुझे लगता है 3-4 साल के बाद जब आपके बेसिक्स टेस्टिंग के सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो यू शुड गेट इन्वॉल्व, बिकॉज टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल है, राइट, कि जो 7 प्रिंसिपल जिन्होंने ISTQ भी करा है, उसमें एक प्रिंसिपल ये भी हो कि आप इन जनरल भी है, राइट, अब कोई प्रॉब्लम आप जल्दी ढूंढ लोगे तो उसे फिक्स करना आसान है। और अब जो है वैसे प्रॉब्लम नहीं आते हैं कि कोई बटन डालना भूल गया, राइट, लेट्स से कि एक फंक्शनैलिटी गायब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि यूज़र स्टोरी बहुत छोटी हो गई है। मतलब जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो वी हैड अ वर्ड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर BR आते थे, व्हाट वी कॉल बिजनेस रूल्स, राइट। तो उसके अंदर 15-20 बिजनेस रूल्स लिखे रहते थे, एंड वी वर टेस्टिंग अगेंस्ट देम। तो हो सकता है कोई भूल जाए कोई पर्टिकुलर पार्ट उसका,
राइट? अब क्या है, छोटी छोटी यूजर स्टोरी है, सो पीपल डोंट फॉरगेट। तो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही अलग है, राइट? हमने वो एक मीम देखा है कि कस्टमर ने बोला कि मुझे 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए, तो ट्रक भी हो सकता है और रोल्स रॉयस भी हो सकती है, राइट? तो दोनों उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, बट किसने उसको कैसे लिया, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कॉल में जाएं और उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दे, राइट? क्योंकि अभी क्या हुआ ना, जब भी कोई बग आता है तो डेवलपर विल बी लाइक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी और तुम्हारी ये थी, फिर देन इट विल गो टू बी एंड देन दे विल क्लैरिफाई, और फिर वो अल्टीमेटली फिक्स होता है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ को पहले ही ख़त्म कर दें, राइट? कि अब्राहम लिंकन ने बोला था कि अगर मेरे को 6 घंटे होंगे एक पेड़ काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे प्रिपरेशन में लगाऊंगा, राइट? तो ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार दिखता है। जैसे मैंने किसी से पूछा कि मान लो एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है जिसमें मैं एक आधार कार्ड नंबर डालूंगा और सारे डिटेल्स आएंगे, कैसे करोगे? तो पीपल आर लाइक कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दे डायरेक्टली टॉक अबाउट ऑटोमेशन, कि मैं वेब ड्राइवर लॉन्च करूंगा, राइट? फिर ड्राइवर डॉट गेट करूंगा, राइट? मैं वो सब पूछ ही नहीं रहा, राइट? आई एम आस्किंग कि आपको टेस्ट कैसे करना है। आप इतना ज़्यादा ऑटोमेशन फोकस्ड होके, मतलब वो दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट? कि हम उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। तो और रिस्क आइडेंटिफिकेशन, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ टेस्ट ही नहीं हो सकती है। आपने एस्टिमेट दे दिया, आप मीटिंग्स में चले गए, और अब जब वो चीज़ आई आप कह रहे हो कि यार ये इसको तो इसमें टेस्टेबिलिटी नहीं है, राइट? तो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू, जिसे हम शिफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, राइट? तो दिस इज लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स अर्लियर। क्योंकि क्या है कि आपकी 3 हफ्ते की स्प्रिंट में लास्ट के 3 दिन मिलते हैं मैक्सिमम। मैंने एक सर्वे भी डाला था, सो 50% और मोर पीपल हैव सेड दैट कि उन्हें लास्ट के 3 दिन में स्टोरी मिलती है। अब उस टाइम पे आके आप कहोगे कि यार मैं इसे टेस्ट कैसे करूँ? तब तो फिर वो जा ही नहीं सकता ना, राइट? फिर क्या होगा, वो Right. जाएगा भी तो इट्स लाइक कि वन थिंग वी आस्क कि टेस्टिंग का एस्टीमेट कितना होता है? टेस्टिंग का एस्टीमेट होता है जो दिन बचे हैं, राइट? पहले आप बोल दो कि हाँ मुझे 6 दिन लगेंगे, बट होता क्या है कि भाई 3 दिन बाद में रिलीज जानी है तो 3 दिन में ही होगी। अब आप जैसे भी करो, राइट? कम करो, ज़्यादा करो उसको। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना, आई थिंक दैट विल हेल्प यू ओनली, कि आपने उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया, डेव एनवायरनमेंट में पहले ही टेस्ट कर लिया। तो वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज बडी टेस्टिंग, राइट? कुछ भी नाम दे सकते हो आप उसको, कि वेयर भी मतलब वो जो 7 या उस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं हम पहले ही बता देंगे यार ये मुझे गलत लग रहा है, उसके बजाय कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा नंबर निकालूंगा, ये मुझे पहले ही दिख गया, इसे तो मैं टेस्ट में रेस करूंगा, राइट? तो अब वो नंबर वंबर के पीछे और कोई उसको इतना मायने नहीं देता है कि यार ये आपने प्रॉब्लम पहले निकाली या बाद में निकाली, तो बेटर है कि पहले ही निकालो। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू मोर इन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम ऑल्सो, राइट? कभी कभी हमारी जब हम रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो विल गेट टू नो द पर्पज ऑल्सो, कि ये रिक्वायरमेंट आया ही क्यों है। उसके बजाय मैं सीधा उसे टेस्ट करूं कि यार हो सकता है कोई यूज ही ना करे उसको, या फिर मैं उसको और बेटर सजेस्ट कर दूं। क्योंकि ना बहुत बार जो प्रॉब्लम्स आते हैं दे आर लाइक लॉजिकल इन नेचर, है ना? कि मतलब ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। जैसे मान लो मैं बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम रेज करता हूँ विच आर लाइक फिग्मा में भी लिखा हुआ है वो, राइट? बट इट्स लाइक कि ये मान लो कैंसिल बटन 2 जगह आ रहा है, राइट? तो ये कुछ गलत नहीं है, कर तो वो 2 जगह से सकता है, बट क्यों दिया गया है वो, राइट? सो ऑल दोज क्वेश्चंस। और कुछ चीजें जो आई थिंक खत्म भी हो जाएंगी या हो गई हैं कुछ जगह तो, लाइक मैं एक टीम में काम कर रहा था वेयर देवर मतलब डिटेल टेस्ट केसेस देवर राइटिंग, एंड इन माय रिव्यू द इंग्लिश मतलब कमेंट्स जो आ रहे थे वो इंग्लिश पे आ रहे थे। मैंने मान लो लिख दिया कि सम टेक्स्ट बॉक्स वुड बी शोन, सो दे आर लाइक ये शोन नहीं इज डिस्प्लेड होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में, और मतलब दोस काइंड ऑफ थिंग्स आई Exactly. थिंक दे हैव गॉन, बट स्टिल आई थिंक देयर आर सम टीम्स, देयर आर सम पीपल हु आर डूइंग इट, राइट? तो वो सब टाइम वेस्ट आई थिंक जो है वो मतलब खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, कि Hmm. पीपल आर जजिंग यू बेस्ड ऑन द इंग्लिश दैट यू राइट, और उस लेवल के रिव्यूज। मतलब Exactly. मैं ऐसा करता था पहले। सब करते थे इन Will be द shown, स्टार्टिंग ऑफ द should be करियर। shown, हाँ will हाँ, be कि shown, should be shown. इंग्लिश में करेक्शन, स्पेलिंग गलत है, ये कैप्स में होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर्स में है। बट हाँ आई कैप्स थिंक में कुछ लाइक नहीं बताता, बट हाँ ये should be shown जैसे is displayed होना चाहिए। मैं किया ये। आई थिंक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं सुनील। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद गौरव, ठीक है? सेलेनियम वर्सेस प्लेराइट। फॉर मी इट्स प्ले राइट। ओके, ठीक आई है। हैव टू गिव रीजनिंग। नहीं, जस्ट आंसर। ओके। Okay, Sunit, most overrated testing trend of 2024. AI. That's cool. Okay, Rahul, one tool you can't live without.
One tool I can't live without. Yeah. Oh my god, there is no tool which I cannot live without. Like there are alternatives to each and every tool in the market. So there is like So there is probably like type of tool. I have to like browser console is the most used thing I think. So that is something that I use. So my tool, if you So say browser, would be the one because everybody use that nowadays. Google Chrome. Google Chrome. No, not Google Chrome. Like every browser console is my go-to tool when I first encounter any issues. At browser console. Let's check the browser console what is showing. Okay. ठीक है. Okay, Gaurav, AI will replace the testers in 5 years. Agree or disagree? Disagree. Okay. For Sunit, next big programming language for like test automation or probably in testing. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म नहीं हो गई थी बट बहुत सारे आ रही है आई गेस स्प्रिंग बूट को भी रिप्लेस करने के गॉटियर करके एक आ रहा है प्लेटफॉर्म आ रहा है आई थिंक दैट हैज वेरी अ लॉट ऑफ प्रॉमिस तो मे बी वो in the next 2-3 years it is going to pick up. Okay. Okay, for Rahul, your like go-to testing resource or blog or YouTube channel, anything? The documentation. If I'm using a tool, the documentation is the first place I look into because most of the time people forget to use that. They directly go into Google and Don't do they that. don't they forget to write documentation in the first place? Nah, most of the tools. So most of the tools, if they have written, they have forgotten to write the documentation. Then I am the one actually. I have, I think so, given not more than like 20-25 documentation PRs in different tools. So I raise it first if I see that that's missing. But yeah, the tool documentation. If I'm using a tool, then the tool documentation is the first place that I look into. And for my general knowledge sharing, internet, I would say that's the general term because I read a lot of places in LinkedIn, internet, every other blog here and there. Everybody shares something which I can get something from. So For Gaurav, test documentation, is it like necessary evil or crucial asset? It's an important asset. May not be crucial, but important. Okay. For Sunit, biggest testing myth you want to bust? बहुत सारे हैं the biggest testing myth I guess QA sign off. QA sign off. Okay. Although And I'm not against it है तो myth ही वो. good. Okay, right. Like अब एक दो closing questions ले लेते हैं कि आपकी कोई biggest learning of 2024 जो मतलब irrespective of testing और Yeah. टेक्नोलॉजी कुछ भी जो आपने 2024 में सीखा है और जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे इन लाइक कमिंग इयर्स. सो राहुल से ही पूछ लेते हैं. स्टार्ट. मेरा ही मुर्गा बना. One of the skills that I have learned, which I have to say thanks to Sunit, is stakeholder management. गौरव, आपके लिए? आई थिंक हर कुछ भी नई टूल या टेक आता है, सो नो द बेसिक्स एंड डू अ लिटिल हैंड्स ऑन सो दैट यू गेट आउट ऑफ मे बी दैट फोमो थिंग, राइट. अगर आप एक बार उसे ट्राई कर लोगे तो देन यू विल नॉट हैव दैट फोमो थिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग. लेट्स से आज राहुल ने बोला LRM, राइट. सो लेट्स से आई डोंट नो व्हाट इज LRM. So if I at least know the basic, even if I don't have the time or it does not help me in today's point of time, so but that can help me in a long run, and I would be away from that FOMO, understanding what it is. ग्रेट ग्रेट. सुनित, आपकी कोई हैबिट जो आपने 2024 में अडॉप्ट की है? मतलब इट इज नॉट, मतलब जो मैंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की है ना 2024 में, दैट इज थोड़ा ऑफ ट्रैक हो सकता है बट इट हैज बीन माय हेल्थ, प्रायोरिटाइजिंग माय हेल्थ ओवर एवरीथिंग. No, same here. So that is what I've done. Last September I started and I intend to keep it continuing in the future also. Great. So- Okay, so फाइनल एडवाइस टू पीपल लाइक जो 2025 में स्टार्ट करने वाले अपना करियर या मतलब अभी 24 में स्टार्ट किया है, उनके लिए कोई एडवाइस लाइक हाउ दे कैन सी करियर ग्रोथ और कैसे वो मतलब चीजें सीख सकते हैं? मतलब दो चीजें हैं जो मैंने अपने करियर में मतलब जो मैंने स्टार्टेड विच आई लर्न लेटर, 1 साल 2 साल काम करने के बाद, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ
or your skill sets to others, do not compare. I mean, stop doing that, right? Evaluation एक अलग चीज है, comparative analysis एक अलग चीज है, और नेगेटिव कंपैरिजन एक अलग चीज है कि मतलब उसको तो आता है मुझको नहीं आता वाला उस तरह का, राइट? Then one thing, that is one thing, and second, I think always keep your goals very clear कि आपको करना क्या है. Like जैसे मैंने कुछ लोगों से पिछले कुछ हफ्तों में बात भी की है, तो किसी को पैसा कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है शुरू के 5 साल, किसी को शुरू में 5 साल मोस्टली नेटवर्किंग पे काम करना चाहते हैं, राइट? तो वो गोल्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए. एंड इफ यू नीड हेल्प, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, यू कैन टॉक टू देम. अभी वो टॉकमेट प्लेटफॉर्म भी आ गया है, यू कैन यूज Right. दैट एज वेल, राइट, टू टॉक टू पीपल अबाउट इट. तो आई थिंक 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसा मैंने कहा कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स. अपनी सैलरी कंपेयर करना किसी से, उस तरह के वीडियोस भी मत देखो प्लीज. मतलब अपने ऊपर तरस खाओ और डोंट डू दिस. एंड ऑब्वियसली सेकंड तो मैंने बोला आपको कि कीप योर गोल्स Perfect. वेरी क्लियर. राइट, परफेक्ट एडवाइस. राहुल, आप क्या एडवाइस दोगे? The advice I would give you people is use LinkedIn for networking, but not for knowing a lot of things, because you will get into that vicious cycle of that comparison, FOMO, and everything, that you will lose track of everything. Focus on what you're doing right now, like learning. If you have joined any organization, learn what that organization does. Like if you from that initial stage, right? If you know about what that business organization business is, what is that business model, how I am an integral part of that business model, it will like work wonder. Like we as a people, as myself, I started very late in that learning, but I would suggest कि अभी से start कर दो, क्योंकि जब जितना तुम जल्दी समझ जाओगे, इतना उतनी जल्दी तुम अपनी इम्पोर्टेंस समझ जाओगे. You understand how important your role is, what is your important, then maybe you can know कि okay, this is my importance and how I can upskill myself to upsell myself, right? आप upskill Right. करोगे और आप अपने आप को upsell कैसे करोगे to other companies, right? Because that becomes a part of, once you grow into organization and if you want to switch maybe, right? So that becomes important और वो आप करोगे, right? सो वो भी आप मतलब नेसेंट स्टेजेस से शुरू करोगे तो आप समझोगे कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे करूं ताकि मैं अपसेल कर सकूं अपने आप को. और इन दैट प्रोसेस डू नॉट यूज लिंक्डइन, क्योंकि फिर वो आप ऐसे बवंडर में फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम वो कहाँ पर. Exactly. Okay, so final thoughts from Gaurav. आई थिंक वैल्यू एडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट? और वो एक बुक है प्रदीप सौंदरराजन की, ग्रोथ ड्रिवन टेस्टिंग. काफ़ी पतली बुक है, उसमें भी इस पर काफ़ी बात की गई है. बट टू ऑल्सो एड माई परस्पेक्टिव इज कि यू हैव टू एड वैल्यू एट डिफरेंट लेवल्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने मे बी ऑटोमेशन अच्छा सीख लिया या टेस्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छी सीख ली, तो you will improvise your work, right? Now how you can help your team, how you can help your manager, how you can help your org, and how you can help in people in public domain, right? Maybe you can write a simple blog and all, right? So all of these things, कभी कभी हम एकदम खुद के में इतना चले जाते हैं कि right, तो people know so much, right? But sometimes they are not sharing or they are not adding value. तो उन्हें कभी कभी लगता है कि यार मतलब ये काम तो मैं भी कर रहा हूँ और उससे अच्छी मुझे टेक्निकल नॉलेज है. But you have to enhance that, then you will create a kind of brand for yourself, right? So and try to do within project also, not only for your team, like how you can help the BAs, right? You interact with BAs, how you can help the customers. So do some value addition. और उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस सीखने का जरूरत नहीं है, राइट? सब चीज़ों के लिए AI सीखना जरूरत नहीं है. अगर मैंने एक छोटा सा किसी को प्लगइन भी बता दिया जिससे वो अपनी अजाइल स्टोरी को एस्टिमेट अच्छे से कर पा रहे हैं, सो दे विल रिमेंबर यू लाइक फॉर लॉन्ग टाइम, right? So those kind of small things also people can do to create a brand and to do value addition to whatever process, project, company you are working. राइट, राइट. सो सेम चीज़ है. मतलब यूजुअली क्या होता है कि मतलब मैं भी एडवाइस करता हूँ. जनरली लोग पूछते हैं कि यार हम करियर में ग्रो कैसे करें, लर्निंग कैसे करें. तो मैं बोलता हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं है आपको स्विच ही करना है, आपको कुछ करना है. तो आप पहले अपने मैनेजर के साथ बैठो, समझो कि चीज़ें आपको करनी क्या चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो. आप बोलो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे करना है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं कैसे वैल्यू एड ऑन करूँ. उनका विजन थोड़ा हाई होगा तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ तुम एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये परफॉर्मेंस भी करना होता है हमें, ये सीख लो. या फिर
हम पाइपलाइन को थोड़ा और एफिशिएंट बना रहे हैं, उसके बारे में पढ़ लो। तो सीक हेल्प लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि वो बाहर पूछते रहेंगे कि यार क्या सीखूं, मैं क्या करूं, तुम बता दो तुम्हारी कंपनी में। वो अपनी कंपनी में डिस्कस नहीं करते कभी कि अपने मैनेजर से या अपने मतलब और टीम लीड से कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हैं, कैसे और चीज़ों, क्योंकि उस चीज़ पे वो पूरा दिन काम करते हैं। रादर देन आप प्ले राइट से एक डमी वेबसाइट पे 4 स्क्रिप्ट बनाना सीख रहे हो, ये सीखो कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे एनहांस कर सकते हो, कि वो आपको एक रियल टाइम लर्निंग देगा। सो मेरी तरफ से भी मतलब यही एड ऑन है। नहीं सही है वो, मतलब मैं इसमें एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा लास्ट में कि उसका भी एक अपना वैल्यूएशन है, बट इट इज फॉर पीपल। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लर्निंग एवरीथिंग। मतलब एक कोई कंटेंट क्रिएटर है, उस मतलब इट इज देयर पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब टू क्रिएट कंटेंट ऑन टूल्स, राइट? Right. टू गिव अ हाई लेवल व्यू ऑफ व्हाट टूल्स दे हैव यूज्ड, मतलब उसको लाइक दैट। बट वही कह रहा हूं कि कीप योर गोल वेरी क्लियर। डू यू वांट टू Right. अचीव एन आउटकम विद अ टूल, और डू यू जस्ट वांट टू टीच एंड प्रीच, या एकेडमिक बनना है, या फिर वो उस लेवल पे, या इन्फ्लुएंसिंग की कैटेगरी में जाना है, या फिर जो भी कंटेंट इन्फ्लुएंसिंग में जाना है? तो वो गोल आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको फोमो ये जो हम बातें कर रहे थे इन सब से तभी बचोगे। तो बिल्कुल। हेंस नो क्लाउडेड जजमेंट्स, ऑलवेज कीप योर गोल क्लियर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। लाइक काफ़ी अच्छी रही हमारी डिस्कशन और काफ़ी पॉइंट्स कवर किए। प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई जो हम कभी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ रिकॉर्ड करेंगे फॉर आवर पब्लिक। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय।